So I don't know how many of you are from different schools or which कौन से board में है. There is one, two, three parents called me last week. Okay, they wanted to change the board. Okay, because they have come with a new school. एक नई स्कूल आ रही है उनकी मैनेजमेंट की, तो दे आर गिविंग इन आईजीसीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड में शायद आ रही है, आई डोंट नो. बट आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद टू थ्री पेरेंट्स. ठीक है, आई पर्सनली आज द रीजन कि व्हाई यू वांट टू डू इट. ठीक है, नाउ मेरा ओपिनियन है कि जहां पे तक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू गो इट. आई डोंट नो विच ग्रेड योर स्कूल स्टूडेंट्स आर. वन प्लस आपको चाहिएगा कुछ क्वेश्चन पूछना है? आपका हैंड रेज है मैम, आपका हैंड रेज है. आप ओपन करेंगे माइक? हेलो? या ठीक है. हैंड I will ask you at the end of the session. I would like to ask on this board discussion only, but I will talk at the end of the session. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. नाउ आई डोंट नो विच ग्रेड योर चाइल्ड इज इन, विच बोर्ड you are into it. The mostly, if I understand, they are from whichever board they are, right? Now, first of all, I'll give you idea which board is good, which board is bad. Sorry, my throat is too bad. ठीक है, आवाज नहीं निकल रही है. Now, if you are students are in Indian board, and if you don't have any reason to shift them, please don't change the board unless you have a very strong reason to do it, right? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा कौन से बोर्ड में पढ़ रहा है. स्पेशली ग्रेड 5 तक या 6 तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है which board your child is studying. It does not matter, right? The subjects, the matter, what subjects which are important is science, math and English. बाकी हिस्ट्री कोई करा रहा है नहीं करा रहा है, लिटरेचर कोई करा रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करा रहा है. नाउ आई डोंट नो पेरेंट चेंज, बट लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ. द लोअर ग्रेड में, द मोर द लोअर ग्रेड. यस मैम. Uh, are you recording the session, sir? यस, आई एम रिकॉर्डिंग. Because I wanted my husband also to participate in this, but I was unable to send him the link earlier. So I can send him the this Yeah, recording you later. can No? you can send him round. He can join. Okay, thank you. Well, just please wait. No problem. So I'm anyway recording it, no problem. Okay, thank you. Yeah. Now, if your child in lower grades, okay, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इंटरनेशनल बोर्ड, दे आर वेरी lenient, very very lenient in lower grades. Even they don't know the simple operations in grade 2 or grade 3. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है उनको when they go to higher grade. प्रेफरेबली मेरा चॉइस ये है. सेकेंडली दे चार्ज अ बॉम्ब. बहुत ज़्यादा फीस होती है उनकी. आई नो द सम ऑफ द स्कूल्स which are charging to the level of 8-9 lakhs. Okay, I don't want to name anybody or no, I don't want to diminish anyone कि कौन सा स्कूल या कौन सा बोर्ड अच्छा है नहीं है. पेरेंट्स हैव मनी, दे आर स्पेंडिंग, आई एम ओके विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको बहुत ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे रही, बट दे से दे हैव ऑल द थिंग्स इन वन प्लेस. नाउ द एज द बोर्ड चेंजेस, आपकी फीस बहुत हाई हो जाती है. सम प्लेसेस इट इज मोर देन 3 times. अगर सेम मैनेजमेंट है, देर आर सम स्कूल्स, वी टेक सीबीएसई ऑल्सो, वी टेक आईसीएसई ऑल्सो, वी टेक आईजीसीएसई ऑल्सो, एंड वी टेक आईबी ऑल्सो. बट एनी कॉम्बिनेशन दे टेक. बट इंडियन बोर्ड यूजुअली हैव लेस fees. There are two main reasons. आप इफ यू आस्क मी, आई एम अ मैथ टीचर. ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट कनेक्टेड है, एंड पीपल कॉल मी फॉर लॉट ऑफ their doubts clearance, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली मैथ्स बट अदरवाइज ओवरऑल एजुकेशन के लिए. Now, whatever I'm recommending right now, or whatever I suggest, it is purely based on my experience. I don't have anything against any board or anything. I'll give you clear, simple apple to apple comparison. What exactly your child have this, how, what criteria you should solve for it, irrespective of what board your child is in, right? Now, what I
preferably if I have to put my child in, what criteria I will look at? मैं कौन सा criteria लूंगा? Okay. सबसे first criteria I'll take the distance of the school from the house. Second, the most important criteria I'll take is time of the class, time of the school. How many things, or how many hours my child will spend in the class. Third, whether school is associated any of the sports activity or not. And if their activity, how actively they are involved into it. Forget about the education. Education तो mandatory है. And third, the most important, मतलब it is not equally important, but what fees they are charging according to what area they are into it. Now I'll give you some of the examples of the school. One school is in Borivali, in Chembur, in Thane, in New Bombay, in proper Bombay. The same management fees having the different all have the different fees. Same school, same management, same board, same curriculum. Absolutely same. But they have different fees according to the area. Okay. Now I don't want to name anyone, but if you go into Burli side, the fees are less. But if you go to South Bombay side, the fees are double of it. If you go same to the Pune side, the same management, the fees is even less than the Borivali. Okay. So Mumbai has a different fees, Pune has a different fees. All the area, Bangalore is a different fees. If even the same management, same structure, still the fees are different. Now, so what I prefer, okay, I personally prefer. There are major reasons to prefer that also. I prefer Indian boards. I'll just put Indian board and a international board. Then if you want to go into detail, I'll go to ICSE, CBSE, IG or IB, everything I'll go, right? So if you want to go into very much detail, we can go a little later on. But first, I'll segregate between Indian board and international board. In general, I'm not saying all the schools I've seen school in CBSE, they have lakhs of rupees of fees. I've seen ICSE board also, they have huge fees, right? I'm not going to very specific to board wise or school wise because I don't want to name any school. But one school or two schools or five schools I know, they have CBSE also and they have IGCSE also. They have a different school. One minute. Okay. So basically, I'll check this between this. Usually, in 80% of the cases, fees of the Indian board schools are reasonably priced. All education is expensive, but it is highly affordable. सब जगह पे महंगाई बढ़ गई है, inflation is on the high, so fees are high for all the schools. It is only government aided schools that have very reasonable fees. To the tune of that, it has a 35, 40,000 fees, or even less than 50,000 fees a year. Otherwise, all the school have more than 1 lakh fees. Now, there are major criteria. I usually get it. That sir, crowd नहीं आता है. Obviously, क्राउड नहीं होगा जहाँ पे 30,000 फीस होगी और जहाँ पे 3 लाख फीस होगी. क्राउड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. आपका फीस में जब 10 टाइम्स का फर्क होता है तो क्राउड में फर्क आएगा. बट एवरेजली अगर आप देखो तो 1.5 lakhs के अराउंड जो फीस है, it is 1 to 1.5 lakhs. It is usually a reasonable fees to take. But some school have 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, I second 8 lakhs to 12 lakhs also. ठीक है. एंड देर आर वन ऑफ द स्कूल जहाँ पे 25 lakhs फीस भी है. आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल, नॉट द कॉलेज, नॉट द मेडिसिन, राइट. स्कूल ये फीस है वहां पे. मतलब आई हैव फ्यू स्टूडेंट हु आर एक्चुअली स्टडिंग इन दो स्कूल्स जहाँ पे 5-5, 10-10 लाख फीस है, राइट. एंड आई विल कम टू दिस पॉइंट कि आपको ये लगता है कि अच्छी स्कूल जाने से अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा. ये बिल्कुल मिथ है. यू नेम द स्कूल. आप फ्यू स्कूल नेम, धीरू भाई अंबानी ले लो, जेबीसीएन ले लो,
इकोमोडियल ले लो, सिंगापुर इंटरनेशनल ले लो, यू टेक द नेम, आपको आदित्य बिरला ले लो, ओबरे ले लो, आप जो भी स्कूल मेरे को बता दो, हर एक स्कूल के स्टूडेंट मेरे क्लास में है, एवरी स्कूल। ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि अच्छे स्कूल में बड़ी फीस देके आपको ट्यूशन की जरूरत है, या फिर एजुकेशन के लिए, या फिर इवन दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, if they are good at football, or if they are good at chess, if they are good at swimming, if they are good at cycling, if they are good at skating, anything, or if they are good at dance, music, आपको लगेगा मेरे को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये भूल जाओ। ठीक है, इफ यू वांट टू चाइल्ड, इफ योर चाइल्ड इज जेम इन एनी ऑफ द एरिया, ठीक है, नॉट एकेडमिकली, अदरवाइज ऑल्सो, यू मेक श्योर दैट यू हैव टू पुट ऑन देम टू स्पेशल क्लासेस। आपके स्कूल थोड़ा सा हेल्प करेंगे, उससे ज्यादा हेल्प वो नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर डूइंग इन द मासेस। They cannot have 3 hours of swimming class. They can't have 3 hours of skating. They don't have a infrastructure to do this. That is why it is myth के मेरे को एक जगह पे सब, हाँ आपका बच्चा सब कुछ सीख जाएगा वहां पे, उसको स्केटिंग भी शायद आ जाएगा, उसको स्विमिंग भी आ जाएगी, बट काम चलाओ आएगी, इट विल नॉट बी अ मास्टर। इफ यू वांट चाइल्ड टू डू आर्किटेक्चर लेवल, अपना व्हाट यू कॉल, लिटरेचर लेवल का राइटिंग करना है, नरेटिव राइटिंग करना है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। मैथ्स में ओलंपियाड देना है, साइंस में देना है, होमी पापा देना है, स्कूल नहीं प्रिपेयर करेगा, स्कूल आपको सिर्फ एनरोल कर देगा, स्कूल नहीं कर पाएगा ये, ना दे कंडक्ट द क्लास, ना दे डू एनीथिंग एल्स। सो इफ यू वांट टू डू इट एनी स्कूल, एनी बोर्ड, कि आपके एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मिथ है कि मेरा स्कूल मेरे को सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये नहीं होने वाला। सो नाउ व्हाट यू डू, दैट इज वाई सेलेक्ट टू क्राइटेरिया। अगर आपका बच्चा जो भी स्कूल में है अभी, विच एवर ग्रेड दे आर इन, प्लीज डोंट चेंज अनलेस यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू इट। हाँ, अगर आपके स्कूल के एनवायरनमेंट खराब है, आपका बच्चे को बुली हो रहा है, आपका बच्चा डीमोटिवेट फील हो रहा है, आपके काउंसलर्स आपको हेल्प नहीं कर रहे, तब तो आप बड़ा रीजन है, अब उसको चेंज करो स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अलावा आपको एकेडमिक में अच्छा करना है, या फिर करिकुलम मेरे को अच्छा लगता है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, आप प्लीज कोई प्रोफेशनल काउंसलर की, एजुकेशन काउंसलर की हेल्प लीजिए, बिफोर चेंजिंग द स्कूल या बिफोर चेंजिंग द बोर्ड। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन मत लीजिए। द रीजन being कि the changing the school, it is for you a single decision, maybe financially you can handle it, maybe anything timing wise you can handle it, आप अपने ड्रॉप पिकअप कर सकते हो, सब कुछ अरेंज कर सकते हो, but the reason is changing the complete environment for the child, it is not at all advisable unless you have very 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 strong reason. I'm not saying which grade your child in, which board you are in. Especially I have seen students who are changing in 9th grade। 9th ग्रेड में तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो बच्चा जहां पे रख रहा है, अनलेस यू वेरी 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 स्ट्रॉन्ग ग्रेड, आपको बिल्कुल चेंज मत कीजिए। ठीक है, आप बिल्कुल चेंज मत कीजिए उसको, बिकॉज इवन इफ यू चेंज द बोर्ड, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन सीबीएसई, इन आईसीएसई, इन स्टेट बोर्ड, इन ग्रेड 9। इफ यू गो टू लोअर लेवल, वो भी ठीक है, एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ओनली इंडियन बोर्ड। और सिमिलरली आईबी और आईजीसीएसई, जीसीएसई में भी इंटरनेशनल में बहुत फर्क है, बहुत जन 9th में चेंज करते हैं, द चाइल्ड मिजरेबली आइदर पुट हायर ग्रेड और लोअर ग्रेड, अलग बात है। अगर आपको स्टेट बोर्ड में आना है बिकॉज योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल, तब तो आपका स्कूल को, आपकी चाइल्ड को कुछ इशू है, एडीएचडी या लर्निंग डिसेबिलिटी है, तब तो आप बिल्कुल चेंज करो, एनआईएस में जाओ, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू मस्ट चेंज इन 9th ग्रेड। आपके बच्चे को प्रेशर देने की कोई मतलब नहीं है, राइट। आप एनआईएस में जाओ, स्टेट बोर्ड में आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा है आपकी, इफ यू हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, यू हैव लॉट ऑफ लिबर्टी, आपको टाइम ज्यादा मिलता है, आपको राइटर मिलता है, आपको कैलकुलेटर यूज करने को मिलता है, उसको अच्छे अच्छे सब्जेक्ट स्किप करने को मिलते हैं, जो आपको जाना ही नहीं है, साइंस स्किप कर सकते हो, मैथ स्किप कर सकते हो, आपको जो नंबर चाहिए, लैंग्वेज स्किप कर सकते हो, आपको टाइपिंग ले सकते हो, बहुत सारी वोकेशनल सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आप उसको दे सकते हो। तो दैन इफ योर चाइल्ड हैज सम इश्यू, बहुत एडीएजी, या दे आर डूइंग ऑक्यूपेशन थेरेपी और समथिंग लाइक दिस, यू शुड टेक अ डिसीजन। एंड आई एम श्योर, अगर आपको ये ऑक्यूपेशन थेरेपी ले रहे हो, आई एम श्योर यू आर इन कॉन्टेक्ट विद अ प्रोफेशनल। आप अच्छे काउंसलर्स को ना, आपको बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो टेक एन एडवाइस ऑफ द प्रोफेशनल, दैट इज मस्ट। बट आपका बच्चा नॉर्मल है, उसको कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज यू वांट देम टू गिव द बेस्ट। ये पेरेंट्स, सब मैंने एक वर्ड लिखा था वहां पे, हाउ द पेरेंट इमोशन वर्क, पेरेंट्स ऑफ दिस डेज
और मे बी अन डेकेड अहेड बिहाइंड, सबको ही चाहिए मेरे बच्चे को बेच देना है, राइट? और उस चक्कर में उनका फायदा होने की जगह पे आप नुकसान नुकसान ही करते हो, राइट? नाउ एक सिंपल है, जो मेरे पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल। शी टोल्ड मी, सर हमारी ही मैनेजमेंट नया स्कूल ला रही है, आईबी। नाउ इफ यू सी दैट सर्टन, ऑल दो डेकेड से चल रहा है, दे आर मूविंग टू आईजीसीसी आईबी बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ मनी। यू बिलीव और नॉट, एनी मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर गुड मनी, ठीक है? उसके पास एक्सपोजर है, उसका टीचर्स है। आई हैव सीन, मेरी डॉटर जो स्कूल में थी, उन्होंने आईजीसीएसई किया था, उन्होंने वही स्टेट बोर्ड के, देवर स्टेट बोर्ड को ही चेंज करके उसके टीचर को ट्रेन किया। नवाज, बिल्कुल पथेटिक सिचुएशन है। पेरेंट आर स्टिल एनरोलिंग देम, हाई फीस भर रहे हैं, लेकिन उनके पास आईजीसीएसई का जो मेन फ्लेवर होता है, आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन है, आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन ही नहीं है। आई डोंट वांट नेम एनी स्कूल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि उनका जो फ्लेवर होता है कि आपको जो बच्चे को करना होता है, आप करने दो उसको। आपको सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लेना इकोनॉमिक्स ले लो, फिजिक्स लेना फिजिक्स ले लो, मैथ लेना मैथ ले लो, इंग्लिश लेना इंग्लिश ले लो, आपको फ्रेंच लेना है, जो सब्जेक्ट वो सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो फ्लेवर ही नहीं है वहां पे, ठीक है? इट इज मॉडर्नाइज फॉर द नेम सेक, इट इज से आईजीसीएसई, खाली पेपर आईजीसीएसई आते हैं, बाकी एजुकेशन कोई लेवल पे किस तरीके से आईजीसीएसई नहीं होता है। सो इफ यू चेंज द स्कूल, इफ यू आर रेडी टू पे 3 times 4 times 5 double time, or 1.5 times or 2 times or 2.5 times fees, please make sure that you understand what exactly you are going to get in this such boards, right? आपको नहीं है, ये आपकी, मैं प्योर बोलता हूँ, इट इज ऑल्दो आई एम इनटू एजुकेशन लाइन, ऑल्दो आई टेक माई क्लासेस, I also in the part of this, but it is pure exploitation of the parents' emotions. आपके पेरेंट्स के इमोशन का बेसिकली सीधा सीधा फायदा उठा रहे हैं। अगर आपका बच्चा अच्छा कर रहा है करंट बोर्ड में, स्पेशली दे आर इन द इंडियन बोर्ड्स, एटलीस्ट ग्रेड 7 8 तक आपको चेंज करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। इनफैक्ट आई वुड से सीबीएसई ने आईसीएसई इज मच 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 बेटर बोर्ड देन आईजीसीएसई और आईबी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको क्राउड अच्छा मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, 7 स्टार होटल जैसा आपका स्कूल होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल, 8 स्टैंडर्ड का एलजीब्रा का या फिर 9 स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का अगर मैं कुछ क्वेश्चन निकाल दूं और मैं किसी को दे दूं, आईजीसीसी आईबी वाले स्टूडेंट को, दे विल नॉट इवन एबल टू थिंक ये किस टाइप का क्वेश्चन है। फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग, ठीक है? उनको समझ में नहीं आएगा क्यूब का आइडेंटिटी होता है, स्क्वायर्स की मल्टीपल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल का इतने आइडेंटिटीज है, ज्योमेट्री में एलजीब्रा के ज्योमेट्री के ट्राइंगल्स के इतने सारे प्रूफ्स है, इतने सारे दिस थिंग है, दे विल नेवर बी एबल टू इवन सॉल्व दिस का है क्या करके। उनके पास बहुत, मतलब मैंने सारे बोर्ड देखे हुए हैं, सारी चीज में कंपेयर करके बता रहा हूँ, दे विल नॉट बी एबल टू थिंक क्या है। ये सारी चीज मैम, बोलिए रचिता मैम, रचित। Thank you so much for sharing insights. I have one question. ये सर, आईसीएसई से सीबीएसई का आपका क्या एक्सपीरियंस है अगर चेंज कर रहे हैं तो? कौन सा ग्रेड? सी एवरीथिंग ये वर्क्स ईच ग्रेड। अर्ली ग्रेड है, अर्ली सेकंड। ग्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर अर्ली ग्रेड में ना आपको 5th के पहले अगर है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनी स्पेसिफिक रीजन टू मूव? डिस्टेंस एक्चुअली वी आर मूविंग ड्यू टू लोकेशन, तो थॉट ऑफ सिटी की चेंज है या सिटी चेंज है या सबब चेंज है? सबब चेंज है। ओके। ना जो नया स्कूल है अभी, मतलब आपको स्कूल तो चेंज करना ही है बेसिकली। हाँ, स्कूल तो चेंज करना, मतलब अगर 10 किलोमीटर से दूर है तो स्कूल तो चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट है ना सर? राइट राइट राइट। ठीक है, तो आपको स्कूल चेंज है तो आप अवॉइडेबल है आपके लिए, करेक्ट है? करेक्ट। नाउ the school which you are saying, I'm coming back to this now, this is something you have to take a decision। स्कूल देखिए अगर आपके घर से जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो एकदम नजदीक होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली स्कूल का टाइम कम से कम हो, एंड स्कूल एटलीस्ट 10 साल ओल्ड हो, ठीक है? आपके पास कुछ बैकग्राउंड हो उसका, रिसर्च करने के मिले, क्योंकि आप शिफ्ट चेंज करोगे ना, आप अच्छे से रिसर्च कर लो। ऑल्दो आई बिलीव के 90% स्कूल बिहेव इन द सेम वे, सबके वहां पे कौवे काले होते हैं, ठीक है? सब जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है, बट आप चेक कर लीजिएगा डिसिप्लिन के मायने में, या फिर सिक्योरिटी के मामले में, या फिर बेसिक एजुकेशन के मामले में, हाउ गुड द स्कूल इज, आपके पर स्टूडेंट का कितना ये होता है। बोर्ड
इंडियन बोर्ड से इंडियन बोर्ड में जाओगे तो लोअर ग्रेड में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो बोथ बोर्ड्स आर गुड। सीबीएसई थोड़ा रीजनेबल है, आईसीएसई बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, बट अगर आपका बच्चा आईसीएसई कर रहा है, इंडिया, एटलीस्ट इन मुंबई वेर आई एम, आई डोंट नो फ्रॉम वेर यू आर ऑल, बट लेकिन जहाँ पे मैं मुंबई में हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप मुंबई से बाहर जाओगे तो पुणे ले लो, बैंगलोर ले लो, चेन्नई ले लो, वहाँ पे मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड बहुत कम होते हैं। एंड इवन इफ गो टू दुबई और समथिंग अदर कॉन्टिनेंट ऑल्सो, वहाँ पे भी, और अदर कंट्रीज ऑल्सो, वहाँ पे भी सीबीएसई के काफी एक्सपोजर्स है। सो बोर्ड्स आर गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बोर्ड ठीक है। आप अगर मेरे को ग्रेड बता सकते हो कि विच ग्रेड है, आई बी एबल टू टेल यू विच एग्जैक्टली यू शुड डू इट। सेकेंड ग्रेड। तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता सीबीएसई में, अगर आपके पास स्कूल नजदीक है। सीबीएसई में खाली ये है, आई टेल यू, तो सीबीएसई में हायर ग्रेड में सीबीएसई बहुत डिटेल में जाता है, अच्छा बोर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हायर लेवल पे जो एजुकेशन, जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो भी सब सीबीएसई बोर्ड होती है। बट आईसीएसई वाले थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं उससे। ओनली थिंग इज के सीबीएसई में एक साइंस होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग, एंड मैथ्स में दे हैव, मे बी सीबीएसई में 9 10 में आपके पास 15 चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, आपके 13 15 चैप्टर आपके मैथ्स में है, राइट। वीजा वीज आईसीएसई में आपके पास 25 चैप्टर मैथ्स में है, आपके 3 डिफरेंट साइंसेस है, हर एक साइंस में 20 20 15 15 चैप्टर है या 12 चैप्टर है। इवेंचुअली इन दिस केस इन हायर ग्रेड 8 9 10, आपका जो साइंस इन आईजीसीसी आईबी में भी बहुत अच्छा हो जाता है। उनके 15 15 17 17 चैप्टर होते हैं, बहुत डेप्थ में होता है उनका साइंस। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। हाँ, आपको ये कर सकते हो कि आप अभी लोअर ग्रेड में है, वन एडवाइस आई गिव इट टू यू, आपका बच्चा कोई भी बोर्ड में है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये देखो कि आपका स्कूल कहाँ नजदीक है, इंडियन बोर्ड में रहने में कोई बुराई नहीं है, इट इज वेरी गुड इनफैक्ट। आप कोई भी, जहां पे आपको लगता है आपका बच्चा है, इंग्लिश, जीके, साइंस, मैथ्स, हर एक जगह पर उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलवाइए। आपका बोर्ड मायने नहीं रखता, बिकॉज ये कॉम्पिटेटिव सब बोर्ड का बाप है, सबसे ऊपर है। अगर आपका बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर रहा है अच्छा खासा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एनी बोर्ड, स्पेशली लोअर ग्रेड में तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ग्रेड में जा रहा है आपका बच्चा, आप उसको आईपीएम, आईएमओ, कर करेज है, ये मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, बट आपकी एसओएफ है, वो सारी सिल्वर जोन है, ये सारी कॉम्पिटिटिव में जो आपको फिजिबल है, जो आपको करा सकते हो, आप उसको इंटीग्रेट कीजिए। आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एनी बोर्ड दे आर वर्किंग। आई होप आई एम एबल टू आंसर। यस, वो एनवायरनमेंट चेंज का आप बोल रहे थे, वो कितना इफेक्ट करेगा चाइल्ड के ऊपर? आप कितना एरिया चेंज कर रहे हो, आप मेरे को इफ यू टेल मी द एग्जैक्ट लोकेशन, अगर मुंबई से हो, आई विल बी एबल टू टेल यू मच बेटर वे। अंधेरी टू बोरिवली। हाँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बोरिवली में श्री श्री रविशंकर को ले लो यार, वेरी गुड स्कूल, अगर आपको एडमिशन मिलता है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा उसमें। ओके ओके। हम्म। ये स्कूल यूजुअली फुल जाता है, अगर आपको एडमिशन मिलता है तो ले लीजिए, इट्स अ गुड स्कूल, फ्रीजेबल फीस है, टाइमिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपको जाना है तो दूसरा सीबीएसई में और कौन सा स्कूल है, ऑर्किड है यहाँ पे बोरीवली में, आपका दूसरा है MKVVIV है, उसका भी टाइमिंग अच्छा है। लेकिन सब में तीनों तीन में है। एक नारायणा है, बहुत हैवी है। ठीक है, वहां पे सिर्फ एजुकेशन होगा और कुछ नहीं होगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, फीस बहुत हाई है उसकी। ऑर्किड है। सीबीएसई में अपने कौन सा स्कूल है, और कौन सा स्कूल है आपके यहाँ पे? आपका एक शायद यहाँ पे मुंबई, ये भी है एक नया स्कूल हुआ है सीबीएसई, जो ये भी खुद में साई बाबा नगर में शिफ्ट हुआ है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, इफ यू कैन टेल मी द स्कूल नेम। अब बताइए कौन सी स्कूल आप सोच रहे हो, तो सर मैं टाइम। ऐसा कोई बॉम्बे स्कॉटिश करके खुला है ना साई बाबा हाँ, में? बॉम्बे स्कॉटिश नहीं है, मुंबई दूसरा नाम है उसका। हाँ, मुंबई हाई स्कॉटिश या बॉम्बे हाँ, स्कॉटिश हाँ, कुछ तो मुंबई है सर। स्कॉटिश नहीं, मेंबर हाई स्कूल ऐसा कुछ है। हाँ, मुंबई हाई स्कूल, यस यस, सॉरी, मुंबई मुंबई हाई हाई स्कूल स्कूल। है, स्कॉटिश नहीं है, क्योंकि स्कॉटिश के हाँ बच्चे मेरे पास है। यस यस यस, सॉरी 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 सर। मुंबई स्कॉट बॉम्बे स्कॉटिश के बच्चे मेरे पास है, तो स्कॉटिश नहीं है, हाँ। हाँ हाँ। एक आपके पास है यहाँ पे, ये है दहीसर के वहां पे, उत्पल संघवी हो गया अभी, पहले वो दूसरा था। उसके अंदर आईजी और सीबीएसई दोनों है। ठीक है। छत्रभुज क्या सर? नहीं नहीं, छत्रपुर तो यहाँ पे है, कांदिवली ईस्ट में है, ठाकुर ठाकुर विलेज में। ये दहीसर में कांदरपाड़ा के वहां पे है, कहाँ पे, अभी अभी ये उत्पल संघवी नाम हो गया उसका, पहले और कुछ नाम था, वो भी फेमस ही था। अभी उत्पल संघवी ने उसको टेक ओवर कर लिया है, काफी 5 6 साल हो गया है उसको लेके, लेकिन अभी उत्पल संघवी ने उसको टेक ओवर किया है।
बट आप सर एरिया बताओगे तो मैं बता सकता हूँ एरिया में क्या है, बट एनी विच यू कैन टेक अ डिसीजन, इट इज ऑन दिस। सीबीएसई में नारायणा बहुत हैवी है, मेरी डॉटर नारायणा में पढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी फीस है। आई वुड रेट श्री रविशंकर मोर देन एनी अदर स्कूल इन सीबीएसई। इनफैक्ट आईसीएसई में आपके पास बहुत अच्छा है, बोरीवली में आपके पास अगर चाहिए तो। आईसीएसई में कौन सा स्कूल है आपके, वीटी है, वो भी हैवी फीस है आपको। आईसीएसई में जीबीसीएन है, वो भी हैवी फीस वाली है, ठीक है। बट आपके एरिया में है, हाँ, आपको लोकेलिटी यार अच्छे मिल जाएंगे लोग, ठीक है। वीटी का टाइमिंग अच्छा है, जेबीसीएन का टाइम थोड़ा सा ऑड है, ठीक है। रविशंकर का टाइम अच्छा है, एमकेवीआई का टाइम अच्छा है, लेकिन वहाँ पे आपको वो जो आप एक लेवल का क्राउड आपको चाहिए, फीस रिजनेबल है वहाँ पे, लेकिन आपको चाहिए कि वहाँ पे मेरे को बहुत पॉश क्राउड चाहिए, तो शायद पॉश क्राउड नहीं मिलेगा। फैसिलिटी नहीं बनाई है अभी उन्होंने, एंड आई बीन टू दैट, उनके मैनेजमेंट को भी मिल के भी आया हूँ, बिकॉज दैट किड इज टू स्टडी विथ मी। तो उनको थोड़ा सा रिवैम्प करना था मैथ्स के लिए, तो आई ऑलरेडी इन मीटिंग, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देख के आया हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लास अच्छे है, नीट एंड क्लीन स्कूल है, बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। सो दैट ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ। बट एक है कि एक लेवल के बाद आपका शायद वो आपको जब क्राउड चाहिए, वो शायद एक लेवल के बाद बढ़ेगा, बिकॉज फीस कम है, तो ऑब्वियसली जो अफोर्डेबल है वहां पे आएंगे। यस, एनीबडी एल्स? Sir, but for a new सर joinee, आई what? हैव Sorry, sir, उनको हाँ, बोलना। बोलिए बोलिए। Sir, I have a query. My daughter, she is studying in ICSE. Initially, she was with CBSE. So I am finding grades are going down, and she is finding it heavy. So should ग्रेड I go back to CBSE कौन से ग्रेड में है? or seventh? Sixth she is completing. So seventh अभी नहीं, वो आपने जा रही शिफ्ट है. कब किया, आपने शिफ्ट कब किया? 2 साल हो गया सर, फिफ्थ एंड सिक्स. तब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, फोर्थ में कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, फिफ्थ में कोई इशू नहीं आएगा, हाँ, लेकिन आईसीएसई में ज्यादा है, करिकुलम वास्ट है, वो जी. आएगा आपको, उतना प्रॉब्लम आएगा। कौन से स्कूल में, इफ यू कैन टेल मी द नेम, पहले कहाँ थी अभी कहाँ है? अभी गुंडेचा में है सर. ओके। एंड तो अर्लियर सीबीएसई में कहाँ थी? सीबीएसई में मुंबई में नहीं था उस समय, हम लोग एमपी ओके में थे. तो ओके। वो भी रिनोन्ड स्कूल है, सागर पब्लिक स्कूल. तो नहीं, वो वहाँ ठीक है। सीबीएसई में जो फोर्थ तक तो रही. और अगर वहाँ आपने ग्रेड में मुझे प्रॉब्लम कभी फील नहीं हुआ, पर पिछले 2 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ग्रेड भी कम हो रहे हैं और उसको नहीं हेवी जा रहा है. नहीं, हैवी तो सर ग्रेड क्या, अगर ग्रेड कम हो गया, जैसे जैसे आगे जाएगा, अगर बच्चा कंसिस्टेंटली उस लेवल पे नहीं जाएगा तो ग्रेड कम हो गए। अब वो एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं या सारे सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं? नहीं, ओवरऑल सर, ओवरऑल नीचे आ रहा है. मतलब मैं भी सिलेबस जब देखता हूँ तो आई फाइंड इट वेरी वास्ट. तो अब मैं सोच रहा हूँ सेवंथ में शुड आई लुक फॉर सम स्कूल इन सीबीएसई सीबीएसई में विच एरिया यू आर इन राइट नाउ, मतलब? और बोरीवली. तो ऑर्किड एक ऑप्शन बचता है मेरे पास. बहुत कम है सर, सीबीएसई में बहुत कम ऑप्शन है आपके पास। जी. और कौन से स्कूल में है वो? अभी गुंडेचा में है. गुंडेचा में है ना, बोरीवली वाला गुंडेचा? गुंडेचा कांदीवली. कांदिवली ईस्ट वाला? जी. ठाकुर विलेज, हाँ तो ठीक है। तो बहुत ज्यादा, आप ठाकुर विलेज में रहते हो, ईस्ट में रहते हो? नहीं, मैं बोरीवली में रहता हूँ, बट बोरीवली वेस्ट से ज्यादा दूर नहीं है, 3 साढ़े 3 किलोमीटर ही पड़ता है मुझे. तो नहीं, वो 20 मिनट्स का रन टाइम है नहीं, उसका. अच्छी है, मेरे गुंडीचा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। जी. एंड दे हैव डन जी. रीजनेबली वेल आफ्टर कोविड। कोविड के टाइम पे पैथेटिक सिचुएशन थी उसकी, ठीक है। ओके सर. अब अच्छी है, कोई इशू नहीं है, और मेरे हिसाब से फिफ्थ सिक्स में अगर आपके पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इशू है तो आप उसको जी. एड्रेस कर सकते हो। लेकिन यस, सीबीएसई आईसीएसई वास्ट होगा, ठीक है। आपका बेसिकली विजन क्या है, आगे बच्चे को क्या कराना है, ठीक है, उसके हिसाब से बट सोच सकते साइंस हो। ही कंटिन्यू करेगी मोस्ट लाइकली, बट अभी साइंस उसको भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बच्चे को भी. साइंस अगर अगर साइंस में रीजनेबल सी डिटोरेट हो रहा है, तो आप मेरे को एक परसेंटेज टर्म में बता सकते हो, उसका पहले क्या परसेंटेज आता था, अभी क्या परसेंटेज है, अकॉर्डिंगली आई अभी कैन। उसका अभी उसका 70s में आ गया है, और इनिशियली मतलब 80s में या 90s में होता था, मतलब मिड 80s पकड़ लीजिए. तो अभी वो तो इतना 70s में ही सर है देखो, मतलब. अगर अगर ये होता था कि फोर्थ फिफ्थ में उसको 100% आता था, अभी 70 हो गया, तो काफी वेरिएशन है। लेकिन जी. अगर 10% का वेरिएशन है, अब उसको चेक करोगे उसको कहाँ पे इशू आ रहा है, कौन सा जी. सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, कहाँ पे उसको। सेकेंडली आपको आईसीएसई में तीन, अब सिक्स में आ गई है, तो आपके तीन साइंस हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीन हो गए 3 होंगे, साइंस है एग्जैक्टली. करेक्ट इंग्लिश है? में भी 2 पेपर लगते हैं उसको. हाँ करेक्ट, तो वो आपका बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैथ्स में कराता हूँ 7 तक, मैं खुद आईसीएसई प्रेफर करता हूँ। कुछ टॉपिक है मैं आईसीएसई से उठाता हूँ, कुछ टॉपिक है मैं सीबीएसई से उठा, लेकिन सीबीएसई इज अ सबसेट ऑफ आईसीएसई, आप ये समझ लिए मेजरली, ठीक है। जी. आईबी में या इंटरनेशनल बोर्ड में थोड़े से टॉपिक अलग होते हैं, जहाँ पे आपके जी.
एप्लीकेशन बेस्ड थोड़े से होते हैं, तो जहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है वहां पे टॉपिक उठा के मैं मेरे करिकुलम में डाल देता हूँ। बट जी आईसीएसई ब्रॉड लेवल कंपेयर सब कुछ अच्छा करता है। इफ यू रिक्वायर एनी हेल्प इन मैथ, मेरे यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके उसको चेक कीजिए, 6 के वीडियो देखिए, जो ऑलरेडी 6 में है ना वो भी। 6 में है सर, अभी तो 6 राइट, तो पास 6 कर के ली वीडियो है। देखिए, 6 के वो लेवल का उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो मैंने वीडियो मैंने लिए, जो टॉपिक मैंने लिया है। ओके। आपको उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रही है कोई? नहीं अभी तो कुछ नहीं है सर। हाँ, तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक्चुअली क्या होता है कि आप जब उसको बच्चे को एक्सपोजर दे दोगे, इफ यू डिडंट गिव द एक्सपोजर ऑफ द स्टूडेंट की सारी चीजें, तो उनका प्रोग्रेस होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप ये बोलोगे मेरे स्कूल के चक्कर में ही मैं पढ़ा हूँ, ये सारी चीजें जी हो रही है। देखो ऑलरेडी आपने एक सब्जेक्ट एक शिफ्ट किया हुआ है, अब उसके जी दूसरे शिफ्ट के लिए सोच रहे हो, राइट? जी। इज शी कंफर्टेबल? आपकी डॉटर है, सन है, सॉरी? डॉटर है सर, शी इज ठीक है। कंफर्टेबल उसमें तो। एक्चुअली एनीवेज क्या है सर, मुझे अभी मूव करना है तो मेरा स्कूल तो चेंज होना ही है उसका एनीवेज। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इज इट नहीं, आपका गुड मूव क्यों आइडिया होना टू। है? हाँ सर। मूव क्यों होना है? नहीं घूमने मेरा चले? एक्चुअली एकोमोडेशन जो ऑफिशियल एकोमोडेशन है दैट इज गेटिंग चेंज। तो अभी मैं बोरीवली हूँ बट नाउ आई एम गोइंग टू माहिम। तो अब वो एनीवेज हाँ, चेंज होनी है तो स्कूल तो मुझे चेंज करना ही है। तो बॉम्बे स्कॉटिश कर लो, माही में जा रहे हो तो इट्स अ गुड स्कूल, गुड बॉम्बे टाइम। स्कॉटिश ट्राई किया सर बट वो एडमिशन एनरोल किया नहीं उसने। तो हाँ, अभी जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें मैं देख रहा हूँ तो वहाँ भी एक ऑर्किड का एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है सीबीएसई में। तो माय बेसिक क्वेश्चन इज कि आई शुड लुक बैक टू सीबीएसई तो उसके देखो ग्रेड्स सेवेंटी बेटर हो परसेंट जाएं। 70% कम नहीं है 6 स्टैंडर्ड में, मतलब कम है लेकिन इतना भी कम नहीं जो आपको बहुत ज्यादा वरी करना पड़े। आईसीएसई ओके में होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर एक्सपो चाहिए, बहुत डेप्थ इन नॉलेज चाहिए, सीबीएसई क्या जी करता है कि सीबीएसई कम कंटेंट रखता है लेकिन डीप में जाता है। ठीक है, आईसीएसई भी बहुत ज्यादा करिकुलम है उनका, मैं जी मानता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका बच्चा जब आगे जाएगा ना तो उसको बहुत सारी चीजें इजी होती है। मैं ही बोल रहा हूँ कि आपको प्रेशर धीरे धीरे दो। अब सडनली जब 11th 12th में प्रेशर आएगा ना उसके ऊपर, स्पेसिफिकली जब जी आपको साइंस में जाना है, आपको कॉमर्स में होता है आपका ऑप्शन, बोला सर आप कोई भी बोर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, तब मैं इंसिस्ट ओके सर। करता कि आप सीबीएसई में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम। जब आईसीएसई से पढ़ा है 2 साल, शी इज जी कंफर्टेबल, आप देखो कि उसको और ज्यादा एक्सपोजर कहाँ आप दे सकते हो, एडिशनल हेल्प कहाँ दे सकते हो। इसके लिए आप इस सिलेक्ट ये करो स्कूल के जहाँ पे टाइमिंग कम हो। ओके आपकी जब टाइमिंग कम होगी, सेकेंडली ना आपके जो भी ट्रांसफरेबल जॉब है जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो अलग बात है, बट आप जी ना एक साइज ये कर लो कि आपके बच्चे को ऐसी जगह पे रखो अभी कि और 3 4 5 साल ना उसको कोई ज्यादा चेंज ना करना पड़े। ओके। ठीक है, क्योंकि आपके देखो अगर सिटी ट्रांसफरेबल है तो आपको कुछ कंट्रोल में नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा वो, राइट? तब राइट सर। सीबीएसई बोर्ड ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि वो थ्रू आउट द सारी जगह पे करिकुलम अच्छा होता है। इवन ओके। आईसीएसई आप जाओगे, लेकिन सीबीएसई अगर मुंबई से बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी सिटी में चले जाओ। जी लेकिन आपको अगर यहाँ पे ना बहुत, एक तो है स्कूल चेंज होती है, सेकेंडली आप बोर्ड भी चेंज कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होगा, हाँ एक आइडेंटिटी आपका चेंज होगा, मतलब आप सोचो कि यहाँ से बैंगलोर से आओ, आप कुछ कर लो, यहाँ मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, आपको बैंगलोर में अलग लैंग्वेज बोलेंगे, तमिलनाडु जी में अलग बोलेंगे, पंजाब में अलग बोलेंगे, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो आपको खुद को दिक्कत होती है। तो जब आप सेकेंडली आपका एनवायरनमेंट पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, तो स्कूल जी चेंज करने के लिए मैं मना इसके लिए भी करता हूँ कि आपका बच्चा सेट है, उसको नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नए टीचर से, नए मैनेजमेंट से, नया तौर तरीका, सब कुछ अलग करना पड़ेगा। जी तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। एज फार एज अवॉइड करो कि जहाँ पे आपको बच्चे को इतनी सारी, मतलब एक स्टडी एक अलग पार्ट है, आपके बाकी के एनवायरनमेंट भी बच्चों को अफेक्ट करता है, और बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपके बच्चे के जब मुश्किल से अभी 2 साल से उसके फ्रेंड बने होंगे, आपने वापस उठा के बिल्कुल नए सर। फ्रेंड के ऊपर डाल दिया, भाई अभी नया फ्रेंड बनाओ, जी तो ये भी मैटर करता है। बट आपका जो अवॉइड नहीं कर सकते हो, तब ये आप करना चाहिए आपको। बट अभी जब हाँ बिकॉज वो 6 में है, अभी 7 में है, आगे के 4 साल चेक कर लो, आप कुछ कर लो, आप अपनी फैमिली को आप शिफ्ट करना है तो आप अकेले शिफ्ट हो जाओ, बच्चे को चेंज ओके मत करो बहुत ज्यादा, अनलेस अनटिल ओके। आपका बच्चा वो चेंज मैनेज कर पाता है। मैं हालांकि नहीं सर कहता हूँ कि मैनेज तो आप कर अभी। लेता है क्योंकि इससे पहले उसके कुछ जो अर्ली ग्रेड्स है वो उस समय हम लोग यूएस में होते थे तो ओके, तब वहाँ थी फिर वो वापस एमपी में आ गई तो उस पार्ट पे शी इज कंफर्टेबल वो प्रॉब्लम नहीं जाता उसे। ठीक है, ठीक है। बट स्टिल आप बोल रहे हैं वो आई कीप इट इन मतलब माइंड अच्छा कि होता है जब अगर आपका बच्चा ना अच्छा खासा जेल हो जाता है फास्ट, फ्रेंड अच्छा जी बनाता है तो उसको एडजस्टमेंट में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक जी है, फिर बोर्ड भी मैटर नहीं करेगा। बट अगर आपका बच्चा आईसीएसई में है, अगर आपको आईसीएसई में अच्छा ऑप्शन मिल रहा है वहां पे, जैसे जी बॉम्बे स्कॉटिश अच्छा है, आपने बोला एडमिशन नहीं हुआ अलग बात है, बाकी जी मुंबई में आपको सीबीएसई के बहुत कम ऑप्शन मिलेंगे। कम है सर राइट।
गुड हॉस्टल मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे आपको मिले। अदरवाइज दोनों बोर्ड में कोई, लेकिन अभी ये ट्राई करना कि आप ज़्यादा शिफ्ट ना करो उसको, स्पेशली बोर्ड, क्योंकि 2 साल के बाद नाइन्थ आ जाएगा। जी। अब तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करूंगा मैं, मतलब मैं एडवाइज नहीं करूंगा, अलाउ तो क्या। 10 तक तो एटलीस्ट अब 4 साल उसको एक ही उसमें चलना चाहिए। आपका ये एक बोर्ड में रिकमेंडेशन सीबीएसई ले है। लो, आईसीएसई ले लो, जो लेना है। ओके। आईसीएसई उसने किया है, प्रेफरेबल है। सेकंड, आपके पास आईसीएसई में ऑप्शन भी ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। राइट सर। अगर आईसीएसई कल जाके आपको अच्छा स्कूल नहीं मिला, फॉर वॉट एवर, बॉम्बे स्कूल आज नहीं मिला है, कल मिल जाएगा, कल अगले साल आपको मिल जाएगा। तो आप जी। बोर्ड का चेंज का तकलीफ नहीं होगा उसको। राइट सर। और सीबीएसई से 9 ग्रेड में तो बिल्कुल भी अलाउ, बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप आईसीएसई में जाओ। 8 के बाद तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब 8 के बाद फिर नहीं मूव करना है। बहुत, 8 भी डेंजरस है। 8 भी ओके। डेंजरस है, क्योंकि 8 में भी पोर्शन बहुत ज्यादा है, मैथ्स में पर्टिकुलरली बता रहा हूँ या फिर साइंस में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके, आप सोचो अभी तीनों साइंस कर रही है, अब वो जी। सीबीएसई में जाएगी, उसको साइंस बहुत इजी हो जाएगा, मैथ्स इजी हो जाएगा। जब जी। वापस आप उसको आईसीएसई में डालोगे 2 साल के जी। गैप के बाद, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगी फिर। ओके लोअर सर। ग्रेड में आप शिफ्ट करो जितना करना है, जबकि मैं अवॉइड करता हूँ, मैं एडवाइज नहीं करता जी। हूँ। बट लोअर ग्रेड में फिर भी आपके पास चांस है, संभलने का चांस है। हायर ग्रेड में 8 के बाद आपको संभलने का चांस नहीं मिलेगा। ओके सर, आई विल कीप इट इन माइंड। श्योर। ओके, थैंक यू सर सर। यस, बोलिए सर मैम, बोलिए। हाँ, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा बेटा, ही इज गोइंग इन द 7th standard. He's currently in ICSE board, and he is quite strong in academics, as in especially science and maths. ओके। Now usko future mein he's thinking he wants to study physics, so take the science route. So ठीक है, someone was telling me that he's better off in a CBSE school than ICSE. कोई फर्क नहीं ऐसा पड़ता, कुछ है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू मैम, ना? सुंदर पिचाई कौन से आईसीएसई में, सीबीएसई में, आईजी में पढ़ा था? हाँ, स्टेट बोर्ड में पढ़ के गया है ना वो, हाँ, सही तो बात है। क्यों करना है? मतलब सारी चीजें देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक ड्रॉबैक है इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई बोल रहा हूँ, आपका टॉपिक से थोड़ा अलग बता रहा हूँ। हम्म। आपने, अगर आपका बच्चा आईजी में है और 11th 12th में आपने उसको आईबीडीपी में या आईजीसीएसई में एस लेवल में डाल दिया, आपको बाहर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने एस लेवल किया है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई लंदन में है, कोई यहाँ पे इंडिया में बेंगलोर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहा है, लेकिन उनके पास बहुत सारे कम ऑप्शंस है। एक यूएस में भी है, जबकि उसके तो डैडी यूएस में थे, तो उसको तो कोई इशू नहीं था करने में। एंड ये सारे मेरे डॉटर के बैच के हैं, मेरे डॉटर से बैच के, मतलब वो शी इज ऑल्सो डूइंग सेकेंडरी एमबीबीएस। आपको अगर कुछ भी ग्रेजुएशन अगर इंडिया में कराना है, आपका हाँ। भी बच्चा कोई भी बोर्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 11th 12th में आप बहुत सोच समझ के बोर्ड सेलेक्ट करना। अच्छा। अगर आपको इंडिया में ग्रेजुएशन कराना है, आप गलती से भी इंटरनेशनल बोर्ड मत लेना। आपके पास हाँ। वहां पे 12th के बाद रोड मैप ही नहीं है आपके पास इंडिया में ओके, कराने पर का, और सपोज इंडिया में करना है तो आईसीएसई चलेगा 11th और 12th में? यस यस, आईएससी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। अच्छा। आईसीएसई में कंटिन्यू करो, अननेसरी किसी के बोलने पर चेंज मत करो। आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, क्यों उसको हिला रहे हो अपनी जगह से? ओके, थैंक यू सर। वही, मुझे प्रोफेशनल से किसी अननेसरी और कोई से। भी स्कूल में हो, कौन से स्कूल में हो? वो आर्य विद्या मंदिर। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो भी स्कूल में है, आप स्कूल से सेटिस्फाइड हो, आपका बच्चा हाँ, अच्छा कर रहा है। आप अगर एडिशनल हेल्प चाहिए तो आपको उसको अदर क्लासेस लगा दो, जो लगा दो आपको, राइट। वो आपके सब पास ऐसे, ओलंपियाड वो सब कर रहा है। बस तो फिट ही है, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ फिट है आपके पास, क्यों अननेसरी बच्चे को हैरान कर रहे हो? करने अच्छा। दो उसको जो करता है। एंड ही इज डूइंग, ओलंपियाड दे रहा है, आपके कंपटीटिव दे रहा है, आप बोल रहे हो सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है। आपको चाहिए ना सीबीएसई की बुक ले आओ, उसको एडिशनल पढ़ा देना, क्या फर्क पड़ता है? फिजिक्स में चलो फिजिक्स पढ़ा लेना, आईजीसीएसई का बुक ले आओ, बोर्ड क्यों चेंज कर रहे हो? ओके, समझ एडिशनल गई। ज्ञान तो देना है ना उसको, मम्मी हाँ, पापा को हाँ, ला दो। समझ गई। ओके, थैंक यू सर। वेलकम मैम। या बोलिए, वन प्लस मैम। हेलो। हाँ बोलिए ना, आपका नाम बता, आप जान सकता हूँ मैम? जिनीशा। हाँ बोलिए मैम। नहीं, क्योंकि आपका मेरा वोकेबल। बेटा अभी सीनियर केजी में है ओके। और वो मॉन्टेसरी जाता है, प्योर मॉन्टेसरी है। ओके। तो हमने ग्रेड 1 के लिए, हाई स्कूल के लिए हमने आईसीएसई बोर्ड ऑप्ट किया था। हम्म। हमने फॉर्म्स, दिस इज रिगार्डिंग, टू बी स्पेसिफिक, दिस इज रिगार्डिंग सिंघानिया। ओके। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो अभी स्पेसिफिकली आपने मेरे को टाइम नहीं देना, इसी के पेरेंट के मेरे को बहुत फोन आए थे। हाँ, तो अभी सर ये क्या हो गया है कि हमने जनवरी में फॉर्म्स भरे, सुनीति के एडमिशन्स हो गया।
हम्म, और फेब में फर्स्ट वीक में सिंघाना इंटरनेशनल का इनॉग्रेशन सब हुआ। ठीक है। तो अभी हमको आई एम इन अ डायलेमा कि अभी वो नया स्कूल ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज अर्लियर ही वाज इन अ मॉन्टेसरी, ऐसा नहीं था कि पहले से वो हाई स्कूल जा रहा था। हम्म, हम्म। तो अभी नया स्कूल स्टार्ट कर रहा है। तो वी शुड ऑप्ट फॉर आईसीएसई बोर्ड और आईजीसीएसई बोर्ड। तो अभी मुझे वो कंफ्यूजन है, बिकॉज इसका सुनीति जो स्कूल है वो अभी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, और हमको फीस पेमेंट करनी है। अगर इफ वी वांट टू ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल बोर्ड आप क्योंकि आपने सिंघाना में, कॉल तो किया है, हमको मंडे को फीस पेमेंट करनी है। वेरी गुड, आपको अभी और आपने फोन कर ही अपने स्कूल का नाम बता दें, आप बताएं दोनों के आईसीएसई और आईजीसीएसई में फीस का डिफरेंस क्या है। हाँ, वो मैंने पता चला मुझे। आप बताइए ना कितने टाइम से, मैं वैल्यू नहीं चाहिए मेरे को, टाइम बता दीजिए, मेरे को तो मालूम है। डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। डबल से ज्यादा है, ट्रिपल है। लोअर ग्रेड में मालूम नहीं। जो पेरेंट ने मेरे को फोन किया था वो भी प्राइमरी में थी, ठीक है, उसके दो बच्चे थे, उन्होंने मेरे को फोन किया था, और दूसरे पेरेंट ने भी था। दिस इज फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग। मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैंने एक सिंपल बता था, आपका फीस 1 लाख रुपए है, वहां से आप सीधा 3 लाख रुपए पे जा रहे हो, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली द फीस, एकेडमिक फीस, आपकी जो बाकी एक्सपेंस है वो मल्टीफोल्ड हाँ। है, ठीक है। यस। बिकॉज आई एम रिलेटेड टू फाइनेंसिस, जब मैंने उनको समझाया, बोला मैम आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम अच्छा है। मेरे 25% स्टूडेंट सिंगानिया से है, 25% ऑफ माई लाइफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरा पूरा का हाँ। पूरा बेस सिंगानिया की, जबकि हमारा लोकेशन बिल्कुल अलग है, ठीक है, मैं बोरीली रहता हूँ, आपका थाना में है, राइट। लेकिन हम्म। बहुत सारे पेरेंट मेरे से कनेक्टेड है, एवरी वीक कम से कम 3 पेरेंट मेरे नए कनेक्ट होते हैं सिंगानिया से, ठीक है। तो ओके। एंड दे हैव वेरी गुड स्कूल, सारे स्कूल है उनके, कनेक्शन बुक्स है उनके, बहुत सारे पेरेंट भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फर्स्ट से फिफ्थ तक में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीबीएसई में डालो या आईसीएसई में डालो, ये सिर्फ ये आईजीसीएसई में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने एडमिशन लिया है, आप ये सोचो, आपका एवरी ईयर अगर 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो हम्म। वेदर यू आर हम्म। गिविंग दैट क्वालिटी टू देम और नॉट, आप ये चेक कर राइट। लीजिए। मेरा हम्म। सिंपल है, इमोशन में आके आप अपना डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आईजीसीसी बहुत अच्छा बोर्ड है या आईबी बहुत अच्छा बोर्ड है। आई हैव वन स्टूडेंट, वन स्कूल यहाँ पे, जो 11 12 में आईबी काफी टाइम से कर रहा है, दे स्टार्टेड विद डूइंग हियर, जो 30 साल पुराना स्कूल है, ठीक हम्म। है, 30 से उससे ज्यादा 50 साल शायद पुराना स्कूल है, ठीक है। दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस, अच्छा स्कूल है, आईसीएसई में अच्छा कर रहा है। बट नाउ एवरीबडी इज गॉन ऑन टू दिस कि हमको आई वांट टू पुट आईजीसीएसई इंटरनेशनल बोर्ड लाना है, क्योंकि आपके पास वो एडमिशन नहीं आ रहा है, वो 3 4 टाइम फीस लेंगे और देंगे वही जो आपका बच्चा आईसीएसई में पढ़ रहा है। नाउ इट इज योर कॉल हाउ यू वांट टू डू इट। इवन इफ यू वांट टू टेक अ कॉल, यू कैन टेक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आईसीएसई में आप कंटिन्यू कीजिए। आप ये देख लीजिए, आप अभी से ओवर स्ट्रेच करके तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये पक्का है कि आपको हायर ग्रेड में 8 9 10 11 12 में आपको लगेगा पैसा आपके बच्चे के लिए, आपके पास ऑप्शन भी नहीं होगा। तो राइट नाउ हाँ। यू हैव, नाउ ऐसा कुछ नहीं होता है कि सीनियर केजी में जूनियर केजी में आपको नहीं पढ़ा सकते बच्चे को, या मॉन्टेसरी में नर्सरी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं पढ़ा सकते हो, पेरेंट खुद पढ़ा सकता है, किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा मैथ, सिंपल सा इंग्लिश होता है, ठीक है, वो सारी चीज। हाँ। सेकेंडली, ये सारी टेंशन लेना छोड़ दो, हाई स्कूल में ऐसा होता है, रेड रेस में भागना बंद करो, ठीक है। आप जो स्कूल में है आप फोकस करो, अपने बच्चे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहाँ दे सकते हो आप प्लीज, आप उसके ऊपर ट्रेन करो, आपको वर्क करना है, सिर्फ उसके ऊपर वर्क करो। आपका कोई भी बोर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लिख के देता हूँ, अगर आपका बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपका अच्छा करता है, यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ कि आपने बोर्ड अच्छा सिलेक्ट नहीं किया, ये नहीं किया। और आप कुछ बोर्ड या कुछ बोर्ड अच्छे का लो, आपको आप जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जरूरत ही ना पड़े, लेकिन 5 साल के बाद आपस मेरे को कॉल करोगे, अगर मैं जब तक मेरा एक्टिव बिजनेस में होऊंगा, आप कॉल करोगे, सर मेरे को मैथ्स के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है। ओके। लेकिन तब आप उसको इन्वॉल्व करो किसी जगह पे, जब तक आपको नहीं हो रहा है आप कंटिन्यू करो, ठीक है। आपका बच्ची को ये सोचो कि फोकस आपका कहाँ पर है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर अच्छा दो, एप्लीकेशन बेस पे सिखाओ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कंटिन्यू करो। अननेसेसरी प्लीज, बिकॉज इमोशन में आके पैसा वेस्ट मत करो। ऑल दो इट्स इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब आपको इतनी क्वालिटी नहीं मिली, सुपीरियर क्वालिटी नहीं मिल रही, राइट। अगर आज मेरे को गाड़ी लेनी, मेरे पास 50 करोड़ है, मेरे को अगर बीएमडब्ल्यू लेनी है, मैं ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, मेरे पास नहीं है बट बीएमडब्ल्यू लेगा, लेकिन मेरा काम नहीं है, मैं हफ्ते में एक बार बाहर जाता हूँ, ठीक है, मैं क्यों गाड़ी खरीदूं, ठीक है। हम्म।
अगर मेरे को जाना है मैं BMW हायर कर लूंगा, वो मेरे को यहाँ से क्या दिल्ली छोड़ के आ जाएगा, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तब मेरे को जरूरत पड़ी तब उसमें इन्वेस्ट करो ना, क्यों करना है? ओके सर, मुझे आपका पॉइंट समझा। आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग। ओके, ऐसा आई हैव हर्ड के सिंस अभी पहले जैसा था सिनेरियो था, जैसे वहाँ पहले एसएससी बोर्ड था, हम्म। फिर suddenly ICSE board आए. Okay, when we were studying in the school, that time we had only SSC board. Okay, after that there was a time when ICSE board started और SSC fade out हो गया. हम्म। So is it true कि अभी my child will come in grade 1, when by the time he comes in grade 10 or whatever, ICSE boards will fade away और तभी सिर्फ IGCSE और IB रहेगा, ऐसा कुछ? हम मतलब 140 करोड़ लोग हैं, हम्म 140 करोड़ हम हैं, राइट? इंडियन बोर्ड, CBSE, ICSE थोड़ा चल जाएगा, इतना थोड़ी डोमिनेट कर लेगा अपने को, वो कितने हैं, इतने सारे हैं, हम्म इतने को। यू नो दैट IGCSE ने 2014 में यहाँ पे आया था, ठीक है, 2007 में आया था इनफेक्ट, सॉरी 2007 में आया था। बाय द टाइम उनका जब फर्स्ट इंडियन बोर्ड आया ना, हम्म उनका एक्चुअली करिकुलम, अब अभी भी उनका करिकुलम है, जून में एग्जाम होता है और नवंबर दिसंबर होता है, मई जून में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है। यहाँ पे ओके उन्होंने देखा कि अगर नवंबर हमने मई जून में रखा तो आपका जून में तो यहाँ पे नया एकेडमिक ईयर 11th में चालू हो जाता है, 10th तक आप कुछ कर हम्म लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे स्टार्टेड वन एग्जाम विच हैपेंस इन फेब मार्च, जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन करिकुलम के लिए होता है, इंडियन बच्चों के लिए होता है। हमारा इतना पावर है कि हम पूरा चेंज कर सकते हैं। और जरा अगर नरेंद्र मोदी और 10 साल टिक गया या बीजेपी टिक गई 10 साल, आई एम नॉट फैन ऑफ एनीवन, अब मैंने मेरे किसी पॉलिटिकल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दे विल फोर्स टू ओपन यूनिवर्सिटी हियर। आपका पूरा करिकुलम जो यहाँ पे होगा, जो भी हो रहा है, आपको 10th के बाद या जब भी आपको डालना है बाहर बच्चों को, राइट? अभी 12th के हम्म बाद कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सारी ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएगी। और ये हो नहीं सकता, एटलीस्ट मेरी लाइफ टाइम में नहीं होगा कि CBSE और ICSE बंद हो जाएगा। स्टेट बोर्ड क्यों डाइंग है? स्टेट बोर्ड भी चल रहा है, डाइंग क्यों है? प्रॉब्लम है दे आर नॉट इनोवेटिव। अब इनोवेट ओके नहीं करते हैं, आपका उसका करिकुलम रिवाइज ही नहीं होता, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, हम्म इसी के लिए प्रॉब्लम है। CBSE ने बहुत ज्यादा इनोवेट किया है, ICSE ने बहुत ज्यादा इनोवेट किया है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। इनफैक्ट IGCSE भी CBSE और ICSE को फॉलो कर रहा है सर्टन लेवल में, ठीक है। उन्होंने अभी लास्ट जो 3 साल पहले जो उन्होंने 25 का पहला पेपर था उनका, दे पुट इट 50% विदाउट कैलकुलेटर, जबकि पहले नहीं था वो। ओके दे पुट इट स्पेशल पेपर फॉर विदाउट कैल्शियम, मेंटल मैथ्स का पेपर है, उनको कैल्शियम अलाउड नहीं है, जबकि लेवल हम्म बहुत ही कम है, मतलब मैं 10th का तक बोल रहा हूँ। अब अगर अपना हम्म 8 9 10 का CBSE का पेपर या ICSE का पेपर कंपेयर करो वहां से IGCSE का, जबकि मेरे मेजर स्टूडेंट हायर में IGCSE के हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आपके पास वहां पे उनके पास बहुत ऑप्शन नहीं है, बट उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा सा हैवी लेवल पे पढ़ो, बट अदरवाइज हम्म वाज डिफरेंस है, तो ऐसा कुछ नहीं मतलब होगा कि। आप बोलना चाहते हैं कि आईजीसीएसई का मैथ्स, आईसीएसई का मैथ्स टफ है, वैसा हायर लेवल का है कंपेयर टू यस, आईजी? यस, यस, ओके। काफी है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि मेरे क्लास में आपका बच्चा कोई बोर्ड में हो, मैं मेरा करिकुलम खुद डिजाइन करता हूँ। एज अ टॉपिक यू शुड नो व्हाट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत सारे हैं जहाँ पे प्रॉफिट लॉस उनको सिखाते ही नहीं 9th तक, आपको समझ ही नहीं आता कि प्रॉफिट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपका करिकुलम में नहीं है। आप देखो परसेंटेज किसके ऊपर सिखाओगे आप? परसेंटेज इंट्रोड्यूस होता है क्या? फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, 5% ऑफ दिस, 10% ऑफ दिस, उतना के लिए थोड़ी है परसेंटेज। परसेंटेज ग्लोबली वाइडली एक्सेप्ट एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन सिखाते नहीं उन लोग। तो ये बहुत ज्यादा फर्क है कुछ कुछ टॉपिक में। और यहाँ पे थियरम्स है, इतने सारे थ्योरम है, वहां पे थ्योरम पूछते नहीं, कॉन्ग्रेंसी पूछती ही नहीं है। उनको कॉन्ग्रेंसी गलती से 5% का, 5 मार्क का आ गया तो आ गया, नहीं तो आता भी नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड बोर्ड, उनके पास बहुत सारी अलग है। उनके पास डेसिमल में आपके पास साइन कोसाइन रूल यूज होते हैं, आपके साइन कोसाइन के बहुत सारे अलग फॉर्मूलाज हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस इन 8 9 10। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चेंज करो बोर्ड, आपको जब तक कंफर्टेबल है आपके बच्चे का बोर्ड चेंज मत करो, स्पेशली इन हायर ग्रेड। इनका तो अभी नर्सरी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके लिए मैं आंसर कर रहा हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ICSE में कंटिन्यू करो मैम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जब जरूरत पड़ेगी आपको कोई ना कोई चेंज मिल जाएगा, आपके पास 5 तक आराम से आप चेंज कर सकते हो, आपको जब कंफर्टेबल हो जाए, नया आ जाए, नया स्कूल आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा रिव्यू मिले उसका, क्या भाई साहब यहाँ तो जाके सारे लंदन में वाइस चांसलर बन रहे हैं, तो अलग बात है। ऐसा होगा नहीं लेकिन। और आपका जो मिथ है ना कि आपको डर लग रहा है कि ICSE बंद हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा, मेरी लाइफ में तो नहीं होगा, उसका बात भगवान जानता है।
आपका इससे एजुकेशन इज बिग मीडिया, बहुत पैसा है मैम एजुकेशन में, बहुत ज्यादा पैसा है, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन से लेकर सब इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बहुत पैसा है, तो ये बंद नहीं होगा इतना जल्दी बोर्ड, और हो ही नहीं सकता। ओके, सर, थैंक यू सो एक मच। क्वेश्चन था। पुनीता यार, महक की बोलिए मम्मी। मैम। या महक इज इन 10th राइट नाउ। तो हाँ, अभी उसका जो स्कूल है, शी इज इन ICSC, एंड उसके अंदर 10th तक ही है स्कूल। अब ओके। फर्दर एक्चुअली बॉम्बे में तो वही है कि हम आगे ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह होते हैं एग्जाम्स रिजल्ट्स के बाद में, एंड HSC बोर्ड में जाते हैं बच्चे 11th 12th में। आपको उसको क्या करा है, कौन सा सब्जेक्ट ले रही है? अब उसके पास अभी कॉमर्स है, कॉमर्स एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स मैथ्स। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, कोई भी ले लीजिए। अगर कॉमर्स लेना है तो कोई इशू नहीं है, 11th 12th का आपको सीए फाउंडेशन करना है, उसको सीए करना है, सीए नहीं, करना है। ऐसा उसका अभी तक कोई व्यू नहीं है CA के लिए तो, बट हाँ हम मेरे को पता नहीं क्यों मेरी बड़ी वाली डॉटर ने HSC बोर्ड किया था, तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट बोर्ड आफ्टर ICSE। क्या तो करा आई दूंगा वाज आपको, 12th के बाद क्या करना है? 12th के बाद एक्चुअली वो शी इज नॉट अभी नहीं ना, कंफर्म, करेक्ट वैसे नहीं, फाइनेंस में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। करो फिर, क्या प्रॉब्लम है? फिर इंडियन बोर्ड में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं तो इंडियन बोर्ड। IB, हाँ, या फिर जैसे आउट ऑफ इंडिया भी अगर, क्योंकि इसके वो तो फादर इज राइट नाउ वर्किंग इन UK, तो उनका अप एंड डाउन चलता रहता है, आप उसको तो भेज दो, उसके बाद डायरेक्टली भी भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 10th के बाद। हाँ, तो उसके फादर ही है ना। हाँ, ऑब्वियसली। हम मतलब, अरे मैं बट बोलो, अभी तक वहां पे स्टे कंफर्म अरे नहीं नहीं है नहीं, ना। व्हाट आई एम नॉट सेइंग दैट वे, आई एम सेइंग उसके फादर ही है, तो आपको भेजना ही वहां पे, तो अभी भेज दो, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके पास नहीं तो वहां पे इकोनॉमिक्स में अच्छी कोर्सेज है, क्या इशू है? मतलब आफ्टर 10th इज इट गुड टू गो देयर? अपना घर है ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी और के घर में रहता है या बाहर रहना तो बात अलग है। मैं तो बोलूँ आप भी शिफ्ट हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अच्छी कंट्री है, क्या प्रॉब्लम है? आप जॉब करते हो यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे घर पर ही तो फिर आई एम बस बोलिए आप, प्रोफेशन। क्यों इतना अलग अलग फैमिली बना के रखा? मूव हो जाओ सारे जन, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अच्छी एक है। और ऑप्शन थोड़ा सोचा था कि अगर बोर्डिंग में डालना है, सपोज कर लो तो 11th 12th जैसे। सीबीएसई ले लो या आईएससी ले लो या इंडियन बोर्ड ले लो। फॉरेन बोर्ड में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, फॉरेन बोर्ड में आगे डोर क्लोज है अच्छा। 12th के बाद। आपको सीबीएसई ले लो, आईएससी ले लो, ये ले लो, क्योंकि आप एकदम 2 साल में इतना ड्रास्टिक चेंज होगा कि सारे इंजीनियरिंग कोर्स, सारे सीए के कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं होगा वो। और ISC बोर्ड के अंदर अभी बॉम्बे में कौन से स्कूल्स रिकमेंडेड है, मतलब? वो आप काउंसिल से पूछ लो, मैं इसमें ज्यादा ये नहीं करूंगा कौन सी स्कूल नहीं, अच्छी अगर है। आपके पास अभी जैसे आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, कुछ से, नो बेटर आप कि कौन से ISC बोर्ड का पार्ला कैसा पार्ला में है? है, जमुना बाई है, आप ले लो वहां पे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके घर के नजदीक है, वो स्कूल चूज करना। वेयर आर यू लोकेटेड मैम? आई एम इन दिस दहीसर बोरीवली साइड, ईस्टर्न। तो क्यों कर रहा है? आपके एमजे में एमजे है ना यहाँ पे, एमजे कॉलेज है ना। MJ कॉलेज, बट वो HSC बोर्ड जाएगा ना उसमें से। क्या फर्क पड़ता है आपको, मतलब आपको देना नारायणा है सीबीएसई में, लेकिन वो साइंस का है, मेजर साइंस। वो साइंस बेस्ड है ना, मेरे को कॉमर्स बेस्ड में जाना था। इसके लिए फिर आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है, मतलब आप अपने बच्चे को ना ऐसे ट्रैवल मत कराओ, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, राइट? ओके। बाकी आपको चाहिए तो जेवियर से यहाँ पे जहाँ जाना है आप जाओ, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? साउथ बॉम्बे में बहुत सारे हैं, बट अननेसरी ट्रैवल करा के फायदा नहीं है। आप कॉमर्स ले रहे हो, उसको फोकस करो इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल मार्केट में, तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके, अलग अलग कोर्सेज कराओ उसको, दूसरे स्किल में ट्रेन करो। आपको ओके। आईटी में है, उसके बाद ट्रेन करो। अगर आपको यहाँ नहीं भेजना तो 12th के बाद आपको शिफ्ट कर देना उसको वहाँ पे, फाइनेंस के कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज के लिए यूके में। आपको तब तक क्लैरिटी आ जाएगी, सब जो इश्यू चल रहा है वर्ल्ड में, वो सारी चीजें राइट। भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक सेटल हो जाना चाहिए 2 साल में हम्म। तो कोई इशू नहीं मेरे हिसाब से। आपके घर के नज़दीक रखो, कोई इशू नहीं है। आपको सारी चीज़ें, कॉमर्स की क्लासेस बहुत अवेलेबल है, मैथ्स के, फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के टीचर्स आपको मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो मेरे पास 500 600 टीचर की टीम है। आप 2000 से कनेक्टेड हो, आप बता देना, आपका नंबर में ब्रॉडकास्ट कर दूंगा, एक दिन में 10 फोन आ जाएंगे आपको कि सर मैं ले सकती हूँ मेरे से, तो आपके पास वो कोई इशू नहीं है। ओके। बट ओनली थिंग इज, बच्चे को अननेसरी बिकॉज ऑफ द बोर्ड आप चेंज मत कराइए। थैंक यू सर। ठीक है, अननेसरी यहाँ से बेचारी चर्चगेट तक जाएगी, केसी में जाएगी, वहां जाएगी, ठीक है, 2 2 3 3 घंटा ट्रैवल करेगी, तो उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। हाँ, आपको क्राउड अच्छा मिल जाएगा,
chances of getting spoiled is different more than getting educated. That's true. Even actually, I was worried about that only in Bombay. तो Because यहाँ इसलिए पे वो वाला 11th 12th का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है. वहां तो फिर अलग 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 Because अलग कल्चर from एकदम। गुजरात तो वहां तो हमने सब स्कूलिंग पे ही किया था અહીં 11th 12th. આવ તું फिर उधर शहर के नीचे का शूज नहीं लेगी वो। ક્રિયા અહીં આવ તું આવ ચલ Thank you, sir. ठीक है, या श्रद्धा मैम बोलिए। या हाय सर। हाँ, एक्चुअली मेरे दो डॉटर्स है, दोनों भी वैसे छोटे हैं अभी। तो फर्स्ट जो डॉटर है ना, मैंने उसको आईजी में डाला था। ग्रेड ग्रेड ग्रेड। शी इज इन ग्रेड 1 नाउ। ओके, ठीक है। और ओके, सो एल्डर वन? उसका मुझे एल्डर 1 शी इज इन एल्डर 1 इज ग्रेड 1 एंड द यंगर 1 इज नाउ वाज इन प्ले ग्रुप। अभी मैं स्कूल उसके लिए देख रही हूँ कि खेलने दो, नर्सरी क्यों से प्राउड? दोनों, खेलने मतलब दो। मुझे ऐसे था सर, मतलब हाँ, मेरा अगर पर्सनली पूछोगे तो मुझे उसको अभी से ही ऐसे स्कूल में डालना है कि मुझे चेंज नहीं कराना एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू, दैट इज, ये है। वैलिड या क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हाँ, तो तो फर्स्ट फर्स्ट में कहाँ पे? आईजी में, आईसीएसई में, सीबीएसई में? कहा आईजी में ही है वो। कौन से स्कूल में है? ये डॉक्टर पिल्लई। ओके, घर के नजदीक है आपके? यस यस, इसलिए उसको वहां पे डाला है। ठीक है, घर के नजदीक है। आप देखो, मेरा मैं बाद में अलग से बात करूंगा आपका, लेकिन ओके। क्योंकि पिल्ले में है, आज स्पेसिफिकली मेरे बहुत सारे पिल्ले के स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, एक तो 10th में ही, अभी जो मैंने आपको बताया 10th में मेरा था, तो पिल्ले का स्टूडेंट बहुत हाँ अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन आप उसको फोकस करना कि जो भी स्कूल में आप चेंज मत करो, बोर्ड कोई इशू नहीं है, 10th में आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करने का। और 10 साल है, 10 साल में कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरा अजम्पशन है। लेकिन उस टाइम पे वापस गेज कर लेना कि आपको चेंज ना करना पड़े, या तो फिर सेम बोर्ड में कंटिन्यू कर सकते हो। आपका बच्चा अगर एक लेवल तक जो रिकग्नाइज डिग्री है वो आपको मिलेगी, जो उसको करना, आर्किटेक्ट करना है या आईआई में करना है या फिर मेडिसिन करना है, कुछ है। ठीक है, मैं रेकमेंड इसके लिए करता हूँ कि अगर इंडियन बोर्ड की, कि आपको जो भी मेडिसिन यहाँ पे करनी है या कुछ करना है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टफ है, जो सारे इंडियन बोर्ड करिकुलम है, सीबीएसई और आईसीएसई करिकुलम बेस्ड है, इंडियन करिकुलम बेस्ड। तो आपको 11 12 में जब उसने आईएससी किया ना, आप भूल जाओ कि आपका बच्चा दोनों कर पाएगा। बहुत जन पेरेंट मेरे को पूछते हैं, सर उसको मैं सीईटी के लिए प्रिपेयर कर लूँ? नहीं होगा, वे डिफरेंट है, एक फ्रेंच बोलता है, एक जर्मन बोलता है, बात ही नहीं हो पाएगी। दोनों करिकुलम में बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका अभी कंटिन्यू है, आप कंटिन्यू कीजिए उसको। आपको लगता है कि मेरे को आज के बाद आपको लगता है कि इंडियन बोर्ड में रखना चाहिए, आपको बेटर ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बेटर ऑप्शन में शिफ्ट कर सकते हो। आपके आपके स्कूल से आप कंफर्टेबल हो तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में मैं बोलता ना, आपके जूनियर के नर्सरी में तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप फोर्थ के बाद अगर आपको लगता है कि आपका शिफ्ट भी हो गया, चेंज करना तो कोई इशू नहीं है। बट जो बोर्ड में आप हो उसमें बहुत पैम्पर करते हैं, आईजीसीएसई में, जीसीएसई में, आईबी में, इनको बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो जो मैंने बुक देखी थी इसकी 4th ग्रेड की, आपको समझाने चांद का डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहे हैं। अब आपको जरूरत ही नहीं इतनी सारी चीजें, बेसिक चीजें समझाओ उसको क्या आ रहा है। तो कुछ कुछ में बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली ऊपर चले जा रहे हैं उन लोग, जिसकी जरूरत नहीं है। आपका बच्चा समझ ही नहीं पाएगा उसको। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन बच्चे को होता है। तो आप ये समझो कि आपका यहाँ पे ध्यान में रह के क्या हो सकता है आपका। दैट्स इट। या एक्चुअली कैसे होता है, अभी जस्ट वो स्टार्ट किया है उसने, तो उसको रोबोटिक्स एआई ये सब चीजें अभी से ही है। नो, तो ठीक है। ऐसे होता है कि मतलब वो थोड़ा सा इतने जल्दी, मतलब हमने तो कभी सीखा नहीं था आज सच वो टाइम पे। मैंने बट एक वर्ड इट्स लाइक मैंने एक वर्ड बोला था ना, प्रायरिटी इमोशन। या वो रोबोटिक सीख रहा है, क्या ही सीख लेगा रोबोटिक में, क्या ही है कर लेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कैसे सीख लेगा वो? लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपोजर दे दे, थोड़ा सा उनको विजुअल दिखाएंगे क्या है, तो एक्सपोजर देना अच्छा है। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है अगर सीखता है आपका बच्चा। फ्यूचर जनरेशन यही करने वाले हैं। ठीक है, कोई ह्यूमन हेल्प नहीं मिलेगा। आपके घर में सारे जन के घर में रोबोट होगा। आप मार्केट में जाओगे, जैसे आप सब्जी खरीद के लाते हो, आप रोबोट खरीद के लाओगे। मे बी एक डेकेड पीछे है, लेकिन ये आएगा। दिस विल कम, दिल विल रोबोट। जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी मशीन आती है जो झाड़ू पोछा करती है, करेक्ट, या वैसे ही आएगा, रोबोट आएगा, आपका खाना भी बनाएगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, रोबोट विल गेट टू दैट लेवल कि बच जो यंगस्टर्स है, दे विल गेट मैरिड टू द रोबोट, इतना लेवल तक जाएगा। बहुत पथेटिक सिचुएशन, लेकिन ये होगा। आपका अवॉइड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि किसी को या अपने बट अपने अपने मर्जी से जीना है सबको।
ठीक है, किसी को कुछ नहीं करना है। कौन सुने मेरी बीवी का, कौन सुने पति का। आपका रोबोट आ जाएगा उसका पति और पत्नी बन के। ये लेवल तक हम देखेंगे, और अपने लाइफ टाइम में देखेंगे, इतना भी देख लेना आप। तो ये वर्ल्ड है, आगे जाके एक्चुअली वही होने इसके वाला है। वजह से ना, हाँ। या तो वो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बोलो या ऐसे कुछ नीट के लिए, जेई के लिए, मतलब वो वाला बोर्ड अच्छा रहेगा सर, कि हमें सीबीएसई बेटर रहेगा? देखो, वो 10th के बाद आप सोचना, आपको वो शिफ्ट करना, आपके पास सीबीएसई का कोई ऑप्शन है अभी? अच्छा। सीबीएसई एक्चुअली इसलिए मेरे यंगर वन के लिए ना मैं सीबीएसई देख रही हूँ। कौन तो से मैंने कौन से? नारायणा के लिए मतलब सोचा है कि मैं नारायणा डालूं उसको। आई विल नॉट तो रेकमेंड। वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, लेकिन आपका बच्चा सिर्फ 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 स्टडी में ग्रो करेगा। आपके आगे और करिकुलम एक्टिविटी, और बहुत बहुत वर्स्ट टाइमिंग है। बहुत वर्स्ट टाइम। मेरी मेरी डॉटर खुद नारायण से है। अब मैं क्या ओके। बताऊं आपको, मैंने आई शिफ्टेड हर फ्रॉम रुस्तम जी टू नारायण इन 8th ग्रेड। ठीक है, पहला साल ही जैसे हो गया, 2 साल कोविड में गए। शी वॉज ओनली बैच जिसने 2 बोर्ड दिए हैं। ठीक है, 11th 12th में डाला। उसके बाद मैं अपनी कहानी बताता हूँ, आप समझ जाओ। 11th 12th में आई एम इन एजुकेशन। मेरी वाइफ ने प्रिंसिपल का सर खा गया 11th में। शी वॉज नॉट गेटिंग मार्क्स। ठीक है, इसको मेडिसिन में जाना था, उसके मार्क्स नहीं आ रहे थे। फिर उसने बताया कि भाई मेरे को अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सर चेंज हो गए, टीचर चेंज हो गए, सारी चीज हो गए। 12th में जाके मैंने उसको प्राइवेट ट्यूशन लगाए हैं। तब जाके मेरी डॉटर अभी मुंबई में पढ़ रही है, नहीं तो फिर उसको और कहाँ पे, सांगली या नत्तारा या फिर बैंगलोर या कहाँ ना कहाँ पढ़ती होती। और फीस तो मेरे को फिर भी वैसी लगती, लेकिन कम से कम वो 10 लाख स्पेंड करके मैंने उसको यहाँ पे ये कर लिया कि वो यहाँ पे एडमिशन ले दे। जबकि नीट का पेपर का मेजर प्रॉब्लम हुआ था 24 में। मेजर प्रॉब्लम था उसका, जो मार्क्स आया है। शी शुड गेट इन सोमैया इन प्राइवेट में, लेकिन बिकॉज इन्फ्लेटेड मार्क था, उसका रैंक सीधा 50,000 से लेके 1,50,000 चला गया। 1 लाख का गैप। तो ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं, तो बहुत सारे केसेस भी हुए। गवर्नमेंट ने बोला कि री एग्जाम होगा, कुछ नहीं हुआ। तभी बोल रहा हूँ कि आप, कुछ चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती है। आप कुछ ना करो, मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची सफर कर रही है। क्या करे उसके लिए? तो मत। और नारायणा के लिए उसमें रहने के बाद भी 6 साढ़े 4 लाख फीस देने के बाद भी मेरे को 10 लाख और स्पेंड करना पड़ा प्राइवेट ट्यूटर के लिए। तो ये आप भूल जाना कि ऐसी सारी चीजें। स्कूल का टाइमिंग देखो, आपको अच्छा मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्कूल, आपका ग्रूम अच्छा होगा, लेकिन आपकी बच्ची सिर्फ और सिर्फ स्टडी करेगी। और बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। ठीक है, आपका बच्चा सिर्फ स्टडी में करना चाहता है, आप करो, मैं ना नहीं बोलता हूँ। बट आपके पास पिल्ले के पास बहुत अच्छा ग्राउंड है। ठीक है, नारायण या पास स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है कि बाहर निकलो तो बेडरूम के साइज का स्कूल है, सॉरी। बट उसके पास ग्राउंड भी नहीं है। ठीक है, आपका बच्चा करेगा क्या? क्योंकि वहां पे वही लोग जाते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ मैथ साइंस करना है, और किसी से लेना देना ही नहीं उसको। दे आर फोकस्ड ओनली ऑन मैथ। करिकुलम अच्छा है, आप अच्छा करो। नारायण की बुक बाहर से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, उनको जाना होता है तो आप बाहर से बुक ले लेना उसकी। सेकंड हैंड में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको अगर अच्छा सा प्रिपेयर करना है तो। बट तो बहुत ज्यादा सीबीएसई के लिए नहीं, कौन सा स्कूल अच्छा रहेगा सर वैसे? सीबीएसई में मैं आपको बोला ना, जो उत्पल संघवी आया है। ठीक है, आप उसका टाइम चेक कर लीजिए। ऑर्किड है आपके बोरीली में, शायद ऑर्किड है एक। ठीक है, आपके पास बिलाब होंगे वहाँ पे, कांदिवली के जो चारकोप साइड पे, वो है। ठीक है, आप बोर्ड को सिलेक्ट करो, आईसीएसई को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। आईसीएसई में बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं। या हमने एक्चुअली वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सोचा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी तो सीबीएसई आपको, के लिए। आप कोई बोर्ड में डाल दो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, इतना याद रख लो। आप कोई बोर्ड में कोई स्कूल में डाल दो, वो ओके। तो पेरेंट को ही मेहनत लेना पड़ेगा। आप जितने आपके जो ओपन हाउस होते हैं जहाँ पे स्कूल बताते हैं मेरी फुटबॉल टीम जीत गई, मेरा ये हो गया, मेरा बच्चा क्रिकेट में ऐसा आया, मेरा चेस में ऐसा आया, वो सिर्फ स्विमिंग में आया मेडल आया, वो सारी पेरेंट की मेहनत है। मेरे को कितने जन है जो स्टेट लेवल में स्विमिंग है, स्केटिंग है, मेडल्स लाते हैं। आपका एक बच्चा मेरे पास अहमदाबाद से है, उससे मेरे क्लास छोड़ दिया क्योंकि सर आपका क्लास का टाइम है, मेरे को नहीं चलेगा। मैंने बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फादर ने बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वो बता स्केटिंग करता है रोज 3 घंटा, तो मेरे मेरे को लेके जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। उसका शाम का क्लास है, वो किसी तरह छोड़ नहीं सकता। उसके बाद फोटोग्राफ अभी मैंने देखा था, तो उसके पास फोटो है सारे मेडल्स के, तो विच इज वर्थ द टाइम। तो पेरेंट को ही मेहनत करना पड़ेगा, स्कूल नहीं करेगा कुछ। आप इसे स्कूल में डालने से हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्टडी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा, एनीथिंग अदर देन सिंपल वेल इन फ्लेवर, आपको कुछ भी चाहिए, आपको
अपने मेहनत करनी पड़ेगी। बी इट सब्जेक्टिवल, बी इट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कुछ ले लो आप। जिम्नास्टिक करना है, मेरे कितने स्टूडेंट है, कितने पेरेंट हैं वो जिम्नास्टिक के लिए अपने बच्चों को लेके जाते हैं, फुटबॉल के लिए उनको ड्रॉप पिकअप होता है। तो ये सारी चीजें, क्रिकेट कोचिंग है, मेरे बच्चे हैं जो 3-3 घंटा क्रिकेट कोचिंग। एक पेरेंट मेरे पास 3 साल पहले आया था, बोला सर ये टाइम मेरे को नहीं जमेगा, मेरा बच्चा रोज 2 घंटा स्विमिंग करता है एवरी डे इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, वो बिकॉज वो स्टेट लेवल पे खेलना चाहता है। तो ये मेहनत लगेगा सब चीज में। सो ये आप स्कूल की चिंता मत करो, आप उसमें देखो, बोर्ड को सिलेक्ट मत करो, अभी के लिए कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि आपका वहां पे आपकी स्कूल की टाइमिंग देखो, फीस स्ट्रक्चर देखो, ओवरऑल ये देखो, तो कोई इशू नहीं है। बट टाइमिंग बहुत ज्यादा, स्पेशली लोअर ग्रेड के लिए ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टाइमिंग मत ले लो आप। आपके पास वीटी इंटरनेशनल आईसीएसई में डालना है, ठीक है, तो ऑप्शन बहुत है आपके पास। लेकिन ऐसा मत लाओ कि बहुत ज्यादा बच्चों का टाइम चले जाए, इतना और टाइम है उसका। मेरी बच्ची 7 o'clock को 7:30 बजे घर से निकलती थी, 5 बजे आके 8 स्टैंडर्ड में 4:30 बजे घर पे आती थी। वो आके पहला 1-1.5 घंटा सो जाती थी, इतना एग्जॉस्टिव है। और वो कोई फायदे का नहीं है। वो लोग सीबीएसई पढ़ाते नहीं है, वो लोग सिर्फ वो ये सब हायर लेवल का पढ़ाते हैं। मेरे वो समझ में आ गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा बाजू में है, आपके बाजू में रखिए, आपको अच्छा लग रहा है करिए, आप फोकस करिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। फर्स्ट वाले के लिए भी सेकंड से आईपीएम चालू हो जाता है, एसओएफ चालू हो जाता है, आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, छोटे वाले के लिए भी प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको प्रिपेयर तो आपको ही करना पड़ेगा, आपके स्कूल कोई हेल्प नहीं करेगी उसमें। ओके, ठीक है। गॉट इट। और या नारायण थैंक यू। थोड़ा सा हैवी है मैम, एक्चुअली एकेडमिक्स के हिसाब से ही हमने सोचा था कि वहां बहुत पे। बहुत हैवी है। आपका बच्चा एग्जॉस्ट हो जाएगा। आप टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग क्या है, शायद लोअर ग्रेड में होगा, हायर ग्रेड का टाइम देख लीजिए। आपको सिर्फ एकेडमिक का फोकस है तो ले लो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मेरे को बाद में बोलोगे कि सर मैं इसके लिए हेल्प कर दो, मैं तो कर लूंगा, लेकिन आपके बच्चे के पास टाइम नहीं होगा, इतनी एग्जॉस्ट हो जाएगी आपकी बच्ची। आपका बेटा या बेटी जो भी है, ठीक है, बहुत हम्म। एग्जॉस्टिव है। वो बहुत फिजिकल स्टेमिना मांगता है। स्कूल का टाइमिंग मैंने बहुत बार रेकमेंड भी किया है, इनफैक्ट मेरे को बुलाया था बहुत सारे आज से 10 साल पहले मैंने बहुत जन को नारायण, बिकॉज उसका करिकुलम, मेरी बेटी जब थर्ड फोर्थ में थी तब मैंने देखा था उसका बुक, मेरे को अच्छा लगा था, तो मैंने बहुत सारे अच्छे जो दे आर ओनली फोकस इन नारायणा, मतलब एकेडमिक्स में 8-9 10 बहुत सारे, तो उन्होंने पूछते हैं कि कहाँ से लिया, तो बहुत जने मेरा नाम नंबर लिख दिया। तो मेरे को फोन आया था सामने से कि सर आप मिलने आ जाओ। बोला क्या काम है, तो बोला ऐसे ही करना है। तो बोला कि हम आपके स्टूडेंट मेरे पास आएंगे। बोला मैं किसी को, ना ही मैं ये काम करता हूँ, ना ही मेरे को इंटरेस्ट है करने में, ठीक है, तो बोला कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके नाम से हम ये करेंगे, आप हमारे चैनल पार्टनर बन जाओ। बोला मेरे को नहीं करना है, बिकॉज मैं उसी को रेकमेंड करता हूँ। बोला आपको ये मालूम है कि कितने बच्चे नारायण में मेरी वजह से आए हैं, आपको ये नहीं मालूम है कितने मेरी वजह से आपके स्कूल से छोड़ के गए हैं। वो भी एक बड़ी लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि आपका करिकुलम हैवी, आप सीबीएसई पढ़ाते नहीं हो, ये नहीं करते हो। तो बोला नहीं नहीं, आपको नहीं कैसे मालूम। बोला मेरे पास है, नारायण के बहुत सारे बच्चे हैं। बोला मेरे बच्चे को तो जरूरत ही नहीं पड़ती ट्यूशन की। बोला तभी तो छोड़ के जा रहे हैं आपको, क्योंकि आप ऐसे लेवल के पढ़ा रहे हो जो हर एक की कैटेगरी में नहीं आता है। तो आपका बच्चा अच्छा है तो इट्स अ हेवन फॉर देम। इफ योर बच्चा इज नॉट दैट गुड साइंस में और मैथ्स में, उसके लिए हेल है। उसके जैसा बुरा करिकुलम नहीं है कोई, वो सीबीएसई पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप सोच के समझ लेना कि आप ऐसे डालो कि जहां पे आपके पास ना मूव करने का जगह हो। बाकी आगे आपकी मर्जी है, आपका बच्चा है। ओके सर। और किसी, या मैं सर तो मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है क्या था। सर अभी सिंगानिया जो स्टार्ट कर रहा है, मेरा बच्चा 5th ग्रेड में एडमिशन ले रहा है ओके। वहाँ आईजीसीएसई में, आईसीएसई से। हाँ मालूम। और वो ये भी करता है, मतलब ओलंपियाड्स, आईपीएम वो भी करता है, अच्छे से करता है। स्वनाई की मम्मी हूँ मैं सर। शिफ्ट करने का रीजन क्या है, बिकॉज नया शिफ्ट बोर्ड आ करने गया। का रीजन ये है कि अ, उनका क्या है यहाँ पे, वॉशरूम और वो सब इशू है सर। हेलो लेकिन क्लीनलीनेस, हाइजीन। कौन सा सुनी देवी में सुलोचना में है। अभी सुनीति में है। सुनीति तो बेटर है सुलोचना से। फिर भी और ना ठीक है, आई एग्री। कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन चालू है तो मच्छर, डेंगू हुआ था उसको बीच में, ओ, तो ये सब बहुत इशू हुआ था। तो आईसीएसई में दूसरा स्कूल देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, बाजू में लोधा है, हीरानदानी है, बहुत सारे हैं स्कूल्स आपके पास।
बोर्ड क्यों चेंज करना उसे? अभी वो फिर टीसी तो देंगे नहीं ना वैसे ही। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे मेरे को बताइए। आप होम स्कूलिंग में चले जाइए, ऐसे अपना इसमें चले जाइए, एनओएस में चले जाइए, क्यों नहीं देंगे? आपको क्यों लगता है कि ये लोग, ये एक्चुअल की दादागिरी है? प्रॉब्लम ये है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों नहीं देंगे? लिविंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं देंगे? अगर आपकी ट्रांसफर होगी, अब यहाँ पे पेरेंट थे, आई डोंट नो वेदर है या नहीं है, अरे आपकी स्कूल ही चेंज किया, स्कूल छोड़ो, आपका एरिया चेंज हो रहा है, आप ट्रांसफर हो रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, आपको नहीं देंगे वो लोग? क्यों नहीं देना पड़ेगा? नहीं, वैसे हमने वैसे ट्राई तो नहीं किया, और इनका मतलब हम जाके स्कूल भी देख के आए तो स्कूल अच्छा है। बिना नया होगा तो अच्छा तो लगेगा। हाँ, हाइजीन वाइज तो हमें अच्छा अरे लगा, लेकिन इसलिए यार हम नया कंस्ट्रक्शन है, चालू कर वैसे। रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा। 7 स्टार होटल में आपको बिल्कुल यही तो चीजें वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन क्या कॉस्ट में आपके पास आ रही है वो तो चेक करो। 2.5 lakhs एडिशनल, 20,000 रुपया हर महीना एडिशनल जाएगा। वेदर इट इज ओके। वर्थ, वो एक चेक करो आप। सेकेंडली, आप अच्छी खासे, आपको फॉरेन भेजना है आपके बच्चे को? डू यू वांट टू वो सेंड हिम फॉरेन? लेट्स सी, अभी तो नहीं डिसाइड किया है वो तो। सेकेंडली, अच्छा मैं ये नहीं बोला, आई विल नॉट आस्क एनीथिंग और आई विल नॉट डोंट नो ऑल्सो, ठीक है? वेदर आप स्ट्रेच कर रहे हो फाइनेंशियली या नहीं स्ट्रेच कर रहे हो, आप अफोर्डेबल हो या नहीं, वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन एक चलो मैं मानता हूँ कि आपकी हाइजीन है, ये सारी चीजें, डेंगू हुआ था, डेंगू तो आपके घर पे भी हो सकता है, नहीं या आपके, सर, वो अकेले उसको नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों को हुआ, टीचर स्टाफ को हुआ। हाँ तो वो चलो ये हो सकता है, तो वो बहुत तो बड़ा मैंने, इशू हुआ था सर लास्ट ईयर, यू माइट हैव सीन। मैं आपको, मैंने मालूम है बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी हुए थे, बहुत सारी, मैंने बोला सिंगाला के सबसे ज्यादा पेरेंट मेरे पास है, ठीक है? सारे स्टूडेंट मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो मेरे को न्यूज आती रहती है। लेकिन मैम आप ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर तो वही बंदा बैठा है जो सब स्कूल चला रहा है। हाँ, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी तो वो जो मेंटेन तो आपने करेंगे ना आपने वैसे। जब नहीं नहीं, मेंटेन तो करेंगे, मेंटेन तो करेंगे, वो मैंने नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास एम्पल ऑफ पैसा होगा, मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेंटेन तो इसको भी करने में कितना खर्चा लगता है मैम? अगर मेरे को स्किल रिनोवेट करना है, अगर वॉशरूम अच्छे करने हैं, कितना टाइम लगता है मेरे को? इफ आई हैव अ उन्हें विलिंग, आपके पास कब से, क्लीनलीनेस नहीं रहता है, पता नहीं क्या, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, कंस्ट्रक्शन था तो इसलिए हमने सोचा कि ये। मैम ये बताइए कि 2,000 स्टूडेंट है आपके पास, 2,500 स्टूडेंट है आपके स्कूल में, हम्म, 1,500 तो कम से कम होंगे, राइट? अब उसको एक बिल्डिंग को रिपेयर करना है, एक बिल्डिंग को ठीक करना है, नया बनाना है या फिर ठीक ठाक करना है, कितना ही टाइम लगता है? विलिंगनेस चाहिए करने के लिए, पैसा भी नहीं लगता है ज्यादा, 2-3 करोड़ में सब कुछ हो जाएगा, 5 करोड़ 10 करोड़ होगा, बहुत कम पैसा है उनको लगाने के लिए। विलिंगनेस चाहिए आपको, एनवायरनमेंट भी ठीक करना है, आजू बाजू भी ठीक करना है, तो करने को कुछ ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। इट डज नॉट टेक मच टाइम। बीएसएस का भी, जो बीएसएस के यहाँ पे होंगे कोई भी बॉम्बे स्कॉटिश के, उनका पूरा बिल्डिंग बन रहा था नया, उन्होंने पूरा नया बिल्डिंग बनाया, उनके स्कूल की टाइमिंग चेंज करे। जिसको करना है वो सारी चीज कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो ऐसे भी नहीं करेगा, आईजी में भी नहीं करेगा, आईसीएसई भी नहीं करेगा। इट इज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट का विलिंगनेस होना चाहिए करने के लिए। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आपको हिस्ट्री मालूम ही है, ठीक है? आई सर डोंट मेरा वांट, एक और सवाल है, अभी सेवेंथ के बाद भी मोस्टली ओलंपियाड्स वगैरह देते नहीं है बच्चे, मतलब अ, बहुत कम हो जाता है क्योंकि हैवी हो जाता है, बहुत हाँ, हैवी हो जाता है। या तो फिर ये अगर आईजी में रहेगा तो वो कोप अप कर सकेगा, हाँ, मतलब 7 तक कोई जेई प्रॉब्लम, वगैरह 7 तक कर कोई सकते। प्रॉब्लम, 7। मैं तो इनफैक्ट, मेरे को तो आपको सजेस्ट करना चाहिए आईजी में भेजो आप, क्योंकि आप आईजी में जाके मेरे पास ही आओगे, तो मेरे को तो बिजनेस में चल रहा हूँ ठीक है, आप मेरे पास ही आओगे, क्योंकि आपको थाना मिलेगा ही नहीं, आईजी के बच्चे, आईजी के टीचर ही नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम है, तो आप घूम फिर के मेरे पास ही आओगे। तो मेरे लिए तो पोटेंशियल बिजनेस सही है, लेकिन मैं एडवाइस वो नहीं करूंगा जो आपके लिए वाजिबी नहीं है, आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके पास बहुत नजदीक में चेक कीजिए, जरूरी नहीं कि एक ही मैनेजमेंट से पकड़ के बैठना है, ठीक है? अब मैंने अर्जेंसी में, मेरा ये अगला खराब है, मैंने ये लिया हूँ, डिले होने के बाद भी मैं सेशन ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज के आई नो कि आपके पास 31 मार्च की टाइमलाइन है। आपने अगर यस। फीस पे भी कर दी है तो आपको बस फीस वापस ले सकती है, और नेक्स्ट वीकेंड में मैं हूं नहीं आपके पास, तब तक अपने बहुत जन ने, एंथुसियास्ट पेरेंट ने पेमेंट कर भी दिया होगा, और आपके पास डिसीजन लेने के लिए एक हफ्ता बहुत कम पड़ेगा। मेरा ये भेजने का रीजन ये है कि आपको अगर कुछ बात करनी है मेरे से,
तो आप ये वीक में 10 दिन में मेरे को बात कर से आपको कर सकते हो। बहुत जन, देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास फीस देने के लिए पैसे हैं या आप कितना स्ट्रेच करके आपके बच्चे को पढ़ा रहे हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ फर्क पड़ता है अपने रेवेन्यू से। एंड ये सबके लिए ग्लोबली अलाउड है। मतलब ये मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल के लिए, सबके लिए। सारे जन क्यों आईजी में शिफ्ट हो रहे हैं? एक तो कि पेरेंट, ऑनेस्टली सॉरी टू से, बट डीपली रिसर्च नहीं करते कि क्या चीज जरूरी है। मेरे को आप ये सजेशन लेने की क्यों जरूरत? मेरे को क्यों बोलना पड़ा कि मैं ले रहा हूँ सेशन? आप क्यों इतने टाइम से मेरे ग्रुप में हो? किसी ने बोला नहीं सर ये हो रहा है। ये तो पेरेंट ने, एक अवेयर पेरेंट ने मेरे को फोन किया, दो तीन ने फिर फोन किया, तब मेरे को समझ में आया कि ये चीज हो रही है। तब मैंने बोला कि भाई साहब, जितने जन आ रहे हैं, आज भी देखो मैंने कितने जन है, 12 जन अभी क्लास में है, ज्यादा ज्यादा 25 जन गए थे। उसमें से एक तो जापान की पेरेंट है मेरी है, वो तो मेरे को कभी भी फोन करके पूछ सकती है। लेकिन कोई रिसर्च करने के लिए रेडी नहीं है, किसी को टाइम ही नहीं देना है। फिर जाओ, आप सामने खड्डा पड़ा है, सब जा रहे हैं, आप भी जाओ गिरो। एटलीस्ट मेरे को ये होगा कि मैंने किसी को बोल के मना किया था, आपके बाद आपको गिरना है गिरो, आपकी मर्जी है। एटलीस्ट कम से कम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको रियलाइज होगा, यार वो बंदे ने मेरे को बोला था, नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन एक जन ने मेरे को बोला था कि भाई, कोई हिरेन देसाई करके था, जिससे बोल रहे थे कि भाई ये डिसीजन अच्छा नहीं है, अननेसरी चेंज मत करो। और आगे जाके तो वापस आपको स्टेट बोर्ड में या आईसीएसई में आना है, तो क्यों शिफ्ट कर रहे हो? आपके पास ऑलरेडी आईसीएसई में अच्छा करके, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे 7th में अभी तक मैं आईसीएसई। मैम दृष्टि मैम, अनाया किस में है, कौन से बोर्ड में है मैम वो? सर वो सीबीएसई में है सर। करेक्ट है, ठीक है, मैं उसको आईसीएसई पढ़ा रहा हूँ, शी इज हैप्पी। मेरे आईजीसीएसई में बहुत सारे पेरेंट है, आपको किसी को चाहिए, आपको जिस बोर्ड में चाहिए, मेरा पेरेंट का नंबर दे दूंगा मैं, आप बात कर लेना। मेरे हिसाब से ना बेसिक क्या होता है कि बेसिक वही रहे। आप कोई भी बोर्ड पढ़ा लो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ऊपर नीचे ये सब। करेक्ट है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बोर्ड है। करेक्ट, बहुत ही अगर आप इंटरनेशनल उसमें चले जाओ तो अलग है कि उनका कैरिकुलम थोड़ा अलग हो जाए। बस सीबीएसई आईसीएसई में कोई इतना फर्क नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता। और सेकंडली, आप, प्रॉब्लम है बिकॉज यू आर बेस्ड आउट इन इंडिया। आपको 10th के बाद आज के दिन में, और मैं कम से कम 10 साल से आईजी ले रहा हूँ, कम से कम, जब से आया है, ज्यादा ही हो गया इनफेक्ट 2008 से। तो आज कितना हो गया? 2025 17 साल हो गया, ठीक है। अब 17 साल से, और 2014 से 15 से 10 साल इसके लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम वहां 10-12 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। एक पेरेंट को, बीच उसने मेरे फाइनेंशियल ग्रुप में कनेक्ट किया है, उसको मजबूरी में उसके बच्चे को लंदन भेजना पड़ा, मजबूरी में, क्योंकि वो 11th 12th भी उससे आईजी किया था। वो बोलते कि सर बहुत खर्चा है। बोला क्या करो अभी? बोला हम इंडिया में, उन्होंने बहुत बार बात किया मेरे से, बहुत सारी चीजें की, लेकिन उसके बाद ऑप्शन नहीं था। एक एक मेरा ऑस्ट्रेलिया में है बच्चा, उसका तो चलो फादर अच्छे खासे है, कमाते हैं। दूसरा है कनाडा में है, एक बच्ची लंदन में है, और एक बच्ची यूएस में है। लेकिन उसके तो फादर ही यूएस में थे, जो पुनीता मैम का केस था, तो उनके फादर ही तो पहले से डिसाइड था कि 10th के बाद जाएगी वहां पे। तो उसको, लेकिन वहां पे बहुत अच्छा है, वो मेरी स्टूडेंट रही है, तो मेरे को बोलता है कि मैसेज आया था सर, यहाँ पे मैंने पी सेट में 98% स्कोर किया है, थैंक करके उसका मैसेज आया था यूएस नंबर से, 2 साल पहले। अब तो उसने सेट भी क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि मेरी बेटी की सेम एज की है। तो मेरी बेटी जब सेकेंड ईयर में, तो वो भी वहां पे 20 साल की हो गई होगी। हम्म। तो आप डिसाइड कीजिए आपको करना है। इफ यू वांट टू चेंज, नो प्रॉब्लम। आपको अगर ये अच्छा लगता है, मेजर कंसर्न है, विच इज हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न, होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां से उसी मैनेजमेंट से उसी मैनेजमेंट में जाना कोई कंपलसरी नहीं है। आप चेक कर लीजिए, आपके पास टाइम है, आप रिसर्च कर लीजिए। आपको वहाँ पे लोधा के ये चाहिए, आपको हिरानंदानी के पेरेंट चाहिए, आपको जो भी वहाँ पे अलग अलग स्कूल है, आप मेरे को स्कूल का नाम दीजिए। मेरा ग्रुप ओपन है आपके लिए, बुक एक्सचेंज ग्रुप ओपन है मेरे पास, ग्रेड का ओपन है, मैं आपको ओपन ऑफर देता हूँ। आपको जिसको पूछना है, कोई पेरेंट है, मेरे को कनेक्ट करना है, आई वांट टू हैव अ रिव्यू ऑफ द स्कूल। आई डोंट नो, 90-80% के स्टूडेंट के पेरेंट के मेरे पास नंबर सेव नहीं मेरे ग्रुप पे जो है। मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, आपके बच्चे के लिए चाहिए, आप उसको पूछिए वहां पे, मेरे को कोई पेरेंट है कनेक्ट कर सकता है, आई जस्ट वांट एन हेल्प। आप मल्टीपल डे डालो, रोज दो एक एक पैसे डालो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पैम भी मत करो, लेकिन आप सारे ग्रुप यूज करो। आप लोगों से बात करो, काउंसलर से बात करो, लेकिन आप पेरेंट से बात करो, आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। मैं बोला लोथा में आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, हीरानंदानी में मेरे पास है, ठीक है, थाना की और स्कूल से, वसंत विहार में आपको चाहिए तो मेरे पास है बच्चे, ठीक है। आपको नंबर दीजिए, आपको कौन सा स्कूल चाहिए, ठीक है, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, आपको कोई ना कोई पेरेंट मिल जाएगा। बट मेरा ये है कि आप
प्लीज रिसर्च करके ये डिसीजन लो, क्योंकि आप डिसीजन बहुत ज्यादा इमोशन में आके ले रहे हो। चलो आपके पास ऑप्शन मिला, अगर आपका पास ऑप्शन नहीं होता तो क्या करते आप? अगर ये आईजी का बोर्ड डिक्लेयर नहीं होता तो क्या करते? मैम आपको पूछ रहा हूँ, स्वरा मैम। तो हम सोच ही रहे थे, मतलब क्योंकि ये बहुत इशू हुआ था ठीक है ना मैम, मच्छर और ये। बराबर है। मैं बोल रहा हूँ ये एज्यूम करो कि आपके पास आईजीसी का ऑप्शन नहीं है। तो आप आईसीएसई वो इवेल्युएट किया आपने बिफोर डूइंग दिस, बिकॉज ये कन्वीनियंट है आपके लिए। अच्छा, सेम मैनेजमेंट में फटाफट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने वेव ऑफ भी किया होगा एडमिशन फीस, ये भी गारंटी बोल रहा हूँ मैं। आपका कोई एडमिशन फी नहीं होगा, आपको सीधा यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, सीमलेस इंटीग्रेशन होगा। करेक्ट है ना? ये प्रॉमिस किया है आपको, सबको नहीं किया है? नहीं, ये तो नहीं, वैसे 60,000 ले रहे हैं। ले रहे, फिर क्या प्रॉब्लम? आपको फायदा क्या मिल रहा है? फिर नहीं, आपकी फायदा हेलो। यही है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये वो सोच इतना रहे हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म 600 क्या पढ़ाई लेंगे आपको ग्लोबल में? आपको जितनी बुक चाहिए मेरे पास से ले लो, हर एक ग्रेड की मेरे पास बुक पड़ी है। क्या ही पढ़ा लेंगे? मैथ्स की तो मैं नहीं दूंगा आपको। ये जो आपकी अनअवेयरनेस है, जो आपको प्रैक्टिस नहीं करते, आप ढूंढते नहीं हो, ठीक है, इसके लिए आपका ये सब फायदा उठा रहे हैं। अब दूसरी क्या बात करें, मेरे घर की बात है। मेरी डॉटर ने आईजीसी से मेरे को 3 साल लगा उसको कन्विंस करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। अब आपकी तो बात ही कर सकता, जबकि मैं तो ये फील्ड में हूँ। मैंने वो बुक देखी जब उन्होंने आईजीसीएस में वर्कशीट पैटर्न निकाली थी, इतने मिस्टेक। और एक्चुअली इट इज 50%, मतलब उसका पहले तो कॉपी 50% था सलीना का, आईसीएस अपना इसका बोर्ड का, आईसीएससी का ही पूरा करिकुलम है, और सब कुछ इतने मिस्टेक्स, इतने मिस्टेक्स, या पूछो मत। तो मैंने बोला कि इसको निकालो, ये मैनेजमेंट में ही दम नहीं है। आप अगर कुछ नया करिकुलम डाल रहे हो तो आप बनाते हो, किसी को प्रूफ रीडिंग करने के लिए देते हो, मिस्टेक तो नहीं है। एक पेरेंट को, एक उसको बोलता है भाई मैथ्स में तो सॉल्व करके देख, ये गलत तो नहीं है। कुछ नहीं किया उन्होंने। तब मैंने बोला इसमें दम ही नहीं मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीजें भी आपको, बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। बट बुक्स तो कैम्ब्रिज की ही आती है सर। तो क्या फर्क पड़ेगा कैम्ब्रिज की? मेरे पास 10 बुक पड़ी है मैम। आप अगर मैं बोल दूं 7 और 8 स्टैंडर्ड की मैं बुक आपको देख लूं, और मैं आपको आईसीएससी वाला, मैंने आपको बोला ना, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ मैथ्स में तो। आपका आईजीसीएससी के कोई स्टूडेंट को, 8 9 10 वाले को, या कोई भी टॉपिक में से मैं 10 क्वेश्चन निकालूंगा, उसमें से 8 क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा पूछा क्या है। फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग, आपको समझ में नहीं आएगा वो बच्चा क्या कर रहा है। सीबीएसई में जो कंस्ट्रक्शन होता है, मैं अगर आईसीएसई वाले को दे दूं उसको भी नहीं समझ आएगा। आईजी का तो बेड़ा करके है, वो तो समझ में नहीं आएगा उनको। तो देखो, मैं इंडियन हूं तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिकॉज आई वांट टू फोकस, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। और बच्चा आपकी अगर आईपीएम वगैरह कर रहा है साइमल्टेनियसली तो। तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका बच्चा। लेकिन 8 स्टैंडर्ड के बाद आपको आईपीएम भी नहीं समझ में आएगा, आईपीएम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बेस इंडियन बेस है। 9th में तो आपको सॉल्व करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे आईसीएससी के बच्चे हैं, अभी मैंने 2 यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, मैं आईपीएम के बच्चे का मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 8 का, ठीक है। उसमें भी गलतियां है, लेकिन वो बच्चा सॉल्व कर पा रहा है, क्योंकि वो आईसीएससी में है। आईजीसीएससी के बस की बात नहीं है वो करना, मैं लिख के दे रहा हूँ, ओके। ठीक है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आपका मर्जी है, आपने अगर मन बना लिया तो आप गो अहेड, एंड यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे आईजीसीसी के, जब मेरे स्टार्टिंग में मेरे बाहर जाना, आईसीसी में क्या है, आपके पास बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है आपको ना, इतने सस्ते में वो लोग सारे क्लासेस करा देते हैं। फिर वो हर वीक एग्जाम, ये वो ऐसा ऐसा करके 1 लाख 1.5 लाख रुपए सब कुछ पढ़ा देते हैं 8 9 10 में। तो मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मेरे 8 9 10 में इंडियन बोर्ड में होते हैं, क्योंकि आईजीसीसी नहीं है और आईबी नहीं है, आपके पास ट्यूटर नहीं मिलते। मेरे मेजर स्टूडेंट आईजीसीसी के हैं, ठीक है। सो आप एडमिशन लीजिए, वेलकम टू माय क्लास, आई विल बी हैप्पी टू ऑनर, ठीक है। तो मेरे को तो फायदा ही हो रहा है। मैं तो आपको कन्विंस ही नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ले लीजिए मैम। बट ये है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम भी है। वी आर ऑन 8th, आपके पास 20 दिन और है। और कोई स्कूल नहीं बोलेगा कि नहीं करे, एवरी टाइम देयर इज स्कूल चेंज होता है, बोर्ड चेंज होता है, आपका लोकेशन चेंज होता है, तो उसको कोई नहीं पूछता है कि भाई आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसा कोई नहीं करता है, नहीं करना चाहिए आइडियली, क्योंकि आपने 6 5th तक पढ़ा है आपका बच्चा, आपने फीस भर दी है, उसने एग्जाम दे दिए, एग्जाम क्लियर कर दी है आपको। फोर्थ हुआ है अभी, फिफ्थ में एडमिशन लेगा। हाँ, तो मतलब 4th तक की फीस आपने भर दी है ना। हाँ।
तो फिफ्थ फोर्थ तक की अपने एग्जाम भी क्लियर कर दिए, हम्म। तो आपने पैसा भी भर दिया, तो आपका एलिजिबली आपको लिविंग सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा? आपके बच्चे नहीं ने वो एग्जाम तो क्लियर देंगे ना, अभी इधर ही ट्रांसफर होएगा तो वो देंगे, दूसरे बट स्कूल में भी क्यों नहीं देंगे? आप मेरे स्कूल में आ जाओ। मेरे स्कूल है नहीं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ हिरन देसाई स्कूल में जा रही हूँ, क्यों नहीं देंगे वो लोग? वाई? कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं ना, क्यों नहीं देंगे? ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये तो गलत बात है, अगर वो कर रहे हैं तो ये तो दादागिरी है बिल्कुल। नहीं तब नहीं, तो वैसे हमने वैसे तो पूछा भी आपने नहीं पूछा है, ही नहीं एक्चुअली है, हमने तो टीसी फिर के लिए ही आप नहीं पूछा है अभी तक। हम नर्सरी स्कूल को मेरी तरफ से गाली दिलवा रही हो। ऐसा नहीं करेगा कोई भी स्कूल, ऐसा नहीं होगा कि वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट देंगे। बहुत हम सारे बच्चे हमने चेंज हो पूछा रहे हैं। भी नहीं है अभी तक, क्योंकि बच्चा भी खुद नहीं चाह रहा है कि उसको भी वही स्कूल चाहिए। जाने तो फिर आपने घुटने टेक ही दिए बच्चे के सामने, तो फिर मैं क्या ही बोलूं। आप आ जाइए नेक्स्ट ईयर मेरे क्लास में ही आ जाइए, फिर देख नहीं लो। नहीं, उसको सुनीति देवी ही चाहिए। तो लेकिन आप आईजी में जा रहे हो ना अभी, हाँ तो हम सोच रहे हैं कि वहां पे ये सब उसके फ्रेंड इश्यूज हो बनेंगे। रहे हैं इसके लिए। ठीक है। आप आपने डिसीजन बना ही लिया तो मोस्ट वेलकम। आपका नाम मैं याद रख लूंगा, जबकि याद रहेगा नहीं मेरे को, लेकिन आप आओगे मेरे पास ही पक्का है। ठीक है। अच्छा बच्चा है, कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि आप कोई सी का एडिशनल हेल्प लो। अगर आप पढ़ा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉम्पिटिटिव का हाथ मत छोड़ना, इतना मैं बोल रहा हूँ, जितना कर सकते हो। आप ले रहे हो हाँ, एडमिशन, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर वही चाइल्ड। मेरा है कि आफ्टर सेवेंथ फिर करो ना, बहुत जल्द कॉम्पिटिटिव। देते हैं, 8 9 10 में भी लोग देते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बच्चा कंटिन्यू कर रहा है, करने दो। आपका बच्चा अच्छा है तो लेट देम डू इट, कोई इशू नहीं है। ओके, हाँ, करने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर। आपको आईजी में कुछ इशू आ रहा है तो मैं बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। इनफैक्ट फिफ्थ बिल्कुल। से आपको आना है तो मेरा फिफ्थ के 2 बैचेस है। ठीक है। यस। उसमें आ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आपको चाहिए, लेकिन आप खुद पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मेरे ग्रुप में हो तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। वीडियो तो आपको मिल ही रहा है मेरे, तो इस हाँ साल तक मिलेंगे, उसके सर, अगले अगले साल नहीं मिलेंगे। आप ये बिल्कुल। और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, मतलब डिफरेंस ऐसे है कि अभी ये लोग पेरीमीटर अब सीखे हैं, बुक्स देखे मैंने केमिस्ट्री के तो। आपको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई टेंशन जरूरत नहीं है। मैथ्स में तो एटलीस्ट कोई जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबका बाप है, आईपीएम है, यूआईएमओ है, एसओएफ है, वो सबके ऊपर है। आप उसकी चिंता मत करो, कोई भी बोर्ड में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा कर रहा ना, मैं आपको अच्छा स्कूल भी कर नहीं रहे पूछा, बस तो फिर हैं। आप जाने दो आपको। मतलब रैंक आता है उसका सेवेंथ वगैरह से। तो बस ठीक है, फिर कंटिन्यू करो उसको, कोई इशू नहीं है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, आपके स्कूल हाँ में वो करके। तो घर पे ही कराना तो आप पड़ता है। करा रहे हो ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? आप अपने आप तो कैपेबल हो, आपको तो स्कूल भी क्यों भेज रहे हो? होम स्कूलिंग कराओ। नहीं सर, ऐसे थोड़े ना, स्ट्रक्चर्ड थोड़ा चाहिए, सब मैम कुछ आप, घर मैं पे कुछ कुछ होता होम नहीं। स्कूलर की पेरेंट्स से मिला हूँ ना आपको, यू विल अमेज टू सी कितना अच्छी ट्रेनिंग हो रही है उनकी। ठीक है। मैं शायद अभी एक क्लास रखूंगा, हम्म। मैं उसके बाद देखूंगा क्या हो रहा है, बट होम स्कूलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके मैम। ठीक है पुनीता मैम, यस सर, थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर, थैंक यू। ठीक है। आपको और किसी को कुछ पूछना है तो लेट मी नो। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको आइडिया आ गया होगा आपको कहाँ पे करना है। मेरा सिंपल फंडा है, कम टाइम दो बच्चों को स्कूल के अंदर, उसको थोड़ा आराम करने दो। आपका बच्चा अगर 1 बजे तक 1:30 बजे तक घर पे आ जाता है, यू शुड बी हैप्पी। वो आराम से 1 घंटा आराम करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। आई थिंक क्रियांश की मॉम भी है यहाँ पे, जिग्ना मैम आप हो? आपका आवाज तो सुना था मैंने, क्रियांश को जब आवाज लगा रहे थे, मैंने आपको म्यूट कर दिया बाद में। हाँ हाँ सर, यस सर। आपको आप भी शिफ्ट करेगा, सोचो चिल्ड्रंस एकेडमी भी आ रही है, ये भी। नहीं नहीं सर, मतलब मेरा कैसे था, थोड़ा सीबीएसई बोर्ड ये मतलब अच्छा है, मैथ साइंस पे ज्यादा फोकस है उसके लिए, बाकी आई एम हैप्पी, मतलब मुझे देखो ऐसे। क्रियांश को मैं पहले नहीं देखता ना, तो मैं आपको बोल भी सकता था। मैं तो अभी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, अच्छा मेरे क्लास का टॉप परफॉर्मर है, उसको छोड़ो मत। मैं तो अच्छा, सरप्राइज तो अपने आगे के लिए क्यों ना बोला, अदरवाइज ही इज डूइंग वंडरफुली वेल। किसके लिए ना बोला सर? नेक्स्ट ईयर के लिए, ट्रैक एंड के लिए है, प्रिपेयर करने ओके के लिए। ओके, अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, ओके, हाँ अदरवाइज हाँ वो है। आप मेरी खुद स्टूडेंट हो। ठीक है हाँ कि हाँ प्रीति अपना पिंकी मैम मेरी स्टूडेंट है, उसका भी ध्रुवीन उसका बेटा है। ठीक है, हाँ। तो ये करो उसको। मैं तो इनफेक्ट मैं वो लेवल तक जाऊंगा, मैं आपको फोन भी करूंगा कि आप आ जाओ, उसको भेज दो। जब मेरे को खाली कंफर्मेशन का, सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन की जरूरत है,
अच्छा। अब तो इतना हक है कि आपको मैं जानता भी हूँ, आप हाँ मेरे पास रहे हो, मैं बोलूंगा कि आप गलती मत करो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें कर सकते हो, और जबकि आप अच्छा। तो इतनी सारी वर्कशीट यूज कर ही रहे हो। अगर आप हाँ खुद पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यस मेरे सर। को, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। बट आपका यस बच्चा सर। अच्छा क्लास कर रहा है, अच्छा खासा पढ़ता भी है, आप दोनों भी डेडिकेटेड पेरेंट हो। आपको तो देखा है हाँ मैंने, आपके हस्बैंड भी हमेशा क्रेच के बाजू में बैठे रहते हैं जब भी केस होता हाँ। है। तो मैं यस सर, यस सर। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें चेक करता हूँ। यस यस ठीक यस है, सर। तो हमेशा यस आपका हस्बैंड बाजू में बैठे रहते हैं। यस सर। यस सर। वी ठीक है, मी तो और इधर माय हस्बैंड, एक इसको पढ़ाता है तो एक वी मेक अ पॉइंट कि बैठना है एक नहीं तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बच्चे अपने आप कर रहा है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डिसाइड कहाँ पे है। हाँ जितना सर, मेरा जल्दी खाली ये था कि सीबी मैथ साइंस में इतना अच्छा है तो सीबीएसई डालना, ये था। और राधा नहीं ना सर? ओके ओके। कंटिन्यू करो, जो कर रहा है कंटिन्यू करो, अननेसरी चेंज मत करो। नहीं वही, और चिल्ड्रंस वैसे बस बहुत सारा वे से अच्छा है मतलब फिर। नहीं, अच्छा भी है, बहुत सारे प्रेशर भी है, सब कुछ है, सबके अच्छा बुरा होगा, देखो। हम हाँ मैं, हाँ मैं भी कुछ में अच्छा हूँ, कुछ में बुरा हूँ, आप भी कोई हाँ। बात वही नहीं हो। वही वही सर, सब सारे में कोई वो तो परफेक्ट नहीं होता, ड्रॉबैक्स तो प्रोज एंड कॉन्स सबके होते ही है सबके सर। होते ये हैं। सर। मैं ये तो सोच रहा था कि उन्होंने आईबी चालू किया था, दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग आईजी। मैंने सोचा कि अच्छा आपने सोच रहे थे तब आप आए इसके लिए, क्योंकि मेरे पास वो भी न्यूज आई है कि हाँ। चिल्ड्रंस एकेडमी में आईजी सर्विसेज चालू कर रहा है, आईबी चालू कर रहा है। अच्छा, वो तो नहीं 11th 12th में हुआ है वो आईबी तो पर। है, अभी यहाँ पे भी चालू कर रहा है, ये अच्छा न्यूज है पक्की। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे प्राइमरी से ऐसा बोल रहा है आईजी वगैरह पैसा वो। बहुत है मैम, आईजीसीसी आईबी है, उसके नाम से मालूम लोग है। पैसा देते हैं। यस यस यस। आपकी फीस कितनी है बताओ, अभी जस्ट एक आइडिया के लिए। हाँ या सर, 116 दे रही हूँ मैं, 16। मतलब 1 लाख है मोटा मोटा। हाँ मोटा मोटा है आप वहां सर। जाओगे कम से कम 2-2.5 लाख रुपया होगा। यस सर यस सर यस सर। विदाउट एनी डाउट, अभी चिल्ड्रंस का आपके यस। पास अभी नहीं ना, 1 आध साल में आएगा न्यूज। आई एम नॉट श्योर, लेकिन पेरेंट ने पक्का मेरे को बोला कि सर उनको दे आर कमिंग विद प्राइमरी ऑल्सो। अच्छा ओके ओके। जो 10 साल यस। से कर रहे हैं, तो लोग अभी आ रहे हैं, तो उनका भी एक वन ऑफ द केस उन्होंने बोला था कि सर मैं भी सोच रही हूँ करूँ क्या शिफ्ट। अच्छा ओके। अरे मैंने क्यों ये सेशन लिया, मेरी ये हालत है तभी मैं सेशन ले रहा हूँ। नहीं नहीं, सी फील बहुत आई सो सर, आपका आवाज बैठा बहुत हुआ है। जगह पे तो आप तो मेरे क्लास लेके, मेरा कभी आवाज सुना है ऐसा? नहीं नहीं आप नहीं तो सर, मेरे नहीं खुद सर। क्लास में आई हैं। नहीं, ठीक है, यस लेकिन सर यस सर। क्या होता है कि पेरेंट के पास बहुत कम टाइम है, आई सेड के इफ आई डोंट गिव देम द टाइम तो आपको नहीं डिसीजन मिलेगा। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए जो बच्चे जो भी स्कूल चेंज कर रहे हैं, तो आप डिसीजन लेने के पहले आपको रिवर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए। यस। ओके, और किसी को कोई डाउट है, स्पेशली आपको चेंज करना है आईजी में, यू आर ऑल द बेस्ट। आप करो, कोई बोर्ड खराब नहीं है, कोई स्कूल खराब नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, आप ये चेक करो आपके बच्चे को कम से कम एफर्ट लगे, कम से कम टाइम लगे, और आप दूसरी एक्टिविटी भी उसको करा दे, उसको खिला दे रहो। आप फुटबॉल क्रिकेट चेस जो भी है, आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में उसको डांस म्यूजिक जो भी है आप उसको कराते रहे हो, इट इज गुड, आपका बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट, वो टाइम चला जाएगा कि जो पढ़े लिखे हैं वो रह जाएंगे, बाकी के जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है वो शायद आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एजुकेशन जो एकेडमिक्स है वही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें अलग भी एक्टिविटी। यस दीप्ति मैम बोलिए, दृष्टि मैम बताइए। सर मैं सर ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे अनाया इज डूइंग गुड, सो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि वो टाइम बीइंग तो जो आप उसको पढ़ा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रिक्शंस का या किसी भी चीज का कुछ भी सिखाया, वो टाइम बीइंग उसको याद रखती है। जब वो शीट्स कर रही है या प्रैक्टिस कर रही है थोड़ा बहुत वो याद रखती है, लेकिन शी फॉरगॉट दैट फॉर्मूला और शी फॉरगॉट दैट ट्रिक अभी तो फिफ्थ में आ रही ना, फोर्थ थर्ड में। में फोर्थ में आ रही, राइट, करेक्ट है। अब जो मैं करा रहा हूँ फ्रैक्शन है, ये वापस रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर में, एक लेवल पे थोड़ा ऊपर जाएगा। और मेरे लेवल में आपको हाँ तो देखो तो सर कोई भी स्कूल में गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जो मेरे क्लास में होता है, जो बहुत ईज से होता है, आप कोई भी स्कूल कोई भी करिकुलम देख लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए मेरा, इसके पहले जस्ट आप आई नहीं, मैंने दृष्टि आपका नाम ही लिया था मैंने, अनाया का। मैंने बोला था कि मैं एक्चुअली प्रोसेस सेट कर रहा था, आपको वो क्लास ज्वाइन करना चाहिए था पक्का। मैं भी यूट्यूब पे डालूंगा करिकुलम, आप चेक कर लेना। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि आप 1.5 साल गई थी, 1.5 महीना गई थी, बोला मैंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए चल रहा था। बोला मैम ने मेरे को रिक्वेस्ट किया तो मैंने 1.5 महीने के लिए मैंने लिया उनको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जेन्युइनली रिक्वेस्ट किया मेरे को और मेरे टाइम फिजिबल हो रहा था। तो दृष्टि का क्लास भी ना, अनय का क्लास भी मैंने ऐसे लिया, तो वो कोई इशू नहीं है मैम। आप वो चिंता मत कीजिए, थर्ड में बहुत ज्यादा टाइम है मेरे पास मोल्ड करने के लिए, और अनय मेरे पास नेक्स्ट ईयर भी है, तो कोई इशू नहीं है। फॉर्चुनेटली यू आर इन जापान,
हाँ हाँ। मेरे को वो भी इशू नहीं है कि मेरा मॉर्निंग टाइम नहीं मिलेगा, आपको जब भी जरूरत है मैं हूँ बैठा हुआ। नहीं तो तो सिर्फ उसको मेरा रिक्वेस्ट था कि अगर जैसे आप जो भी आप फॉर्मूला या कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, तो आप एंड ऑफ द क्लास या कैसे भी आप उसे 10-15 मिनट्स में अगर वो कर पाए कंपाइल टाइप, तो मैं वो करके कंपाइल करके देता हूँ ना, मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, मैं जो लाइव चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। बट वो टाइम में के लिए प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वो एक हफ्ते के बाद नहीं, एक महीने के बाद का प्रॉब्लम है आपका। एक्चुअली मैं वही चाह रही हूँ कि या तो मैं वो चीज सीखूं, फिर अगर या, वो ये तब मैं उसे याद दिलाऊं। या तो तो फिर मैं छोटी बच्ची को मैं पाल लेता हूँ, फिर आप उसके पीछे लग जाओगे तो इसीलिए उसको। मुझे इसीलिए मुझे कि आप लास्ट 15 मिनट्स में आपका वीडियो देखूं या क्लास में आओ लास्ट 15 मिनट्स उस चीज नहीं को नहीं, सीखूं और फिर मेरा वो। मेरा कैसा ना, ऐसा नहीं होता स्निप शॉट में। मेरे हर एक जो वीडियो होती है, आप देखो साथ में बैठ के आपके छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो, साइड साइड में हेडफोन लगा के रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आपका सुन। मेरे क्लास तो होता है 1.5 घंटा का होता है, आप कभी भी आपके पास टाइम मिलता है। बट उसके पास जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता है, देखो मेरी वर्कशीट खत्म किया करो आप। अनाया क्या प्रॉब्लम है कि आपकी उसकी असाइनमेंट पेंडिंग है, उसी के लिए इश्यू आ रहा है। अगर कर लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसको उसको असाइनमेंट का सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि वो ठीक है वो एक्टिवली करती है, बट वो उसका प्रॉब्लम सर है कि वो जल्दी ऊब जाती है चीजों से। तो 20-20 मिनट कराओ, 20 मिनट का टाइम रखो, एवरी 20 मिनट, दैट्स इट। तो फिर उसको ऐसा लगता है अरे रोज मैथ्स करनी है, अरे कर लो, रोज करना है, ऐसा बीस हो मिनट जाता है। देखो, 20 मिनट हर एक से तो सब्जेक्ट करना पड़ेगा ना। मैथ्स नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी है, साइंस भी, सब कुछ करना पड़ेगा। 2 घंटा आपको लगाना ही पड़ेगा। अब आपकी स्पीड कितनी है, उसको स्पीड जल्दी कर, खत्म कर। और मैं तो, मेरी कोई वर्कशीट में नहीं, देखो 20-30 मिनट ज्यादा होती नहीं है। अगर वो ध्यान से करेगी तो 20 मिनट में ऐसे ही कर पाएगी वो। लेकिन मैं दो उसका वर्कशीट ज्यादा, कि वो मैं दो थोड़ा सा ना पढ़ाई को लेके इतना उसमें है नहीं, जील नहीं है इतना। आ जाएगा, आ जाएगा, छोटी है अभी, आ जाएगा। आप चीज है। कंटिन्यू करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंस रखना पड़ेगा, आ जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी आपको। शायद थोड़ा मैं सा सीख लूं थोड़ा बहुत, इस वजह से मैंने आपसे पूछा बस सिर्फ। पतंग पतंग जगा दे आप, देखा तो होगा ना, कभी ढील देना पड़ता है, कभी खींचना पड़ता है, दोनों वो तो करके थोड़ा सा कर करके धीरे धीरे चलाओ, कर लेगी वो। शी इज अ गुड स्टूडेंट, आई डोंट हैव हाँ एनी नहीं, डाउट अबाउट वैसे इट। ठीक है सर वो, बट वही है कि मुझे लगा शायद मैं सीखूं तो मैं याद दिलाऊं कि ठीक है तू ये वाली ट्रिक लगा सकती है मैं ये फीस, मेरी में से कर। फीस दे दूंगा मैं आपको, आपको सिखाना, आपकी बच्चे सिखाओ। ठीक है सर। लेकिन आप सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट हैं जो बच्चे के साथ 8 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में साथ में बैठते हो, क्या सर आपका क्लास हमको भी अच्छा लगता है, हम सीखते हैं। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखो। मेरा खाली इनका एक इंस्ट्रक्शन था, आप क्लास में इंटर मत करो, आप क्लास में उसको इंस्ट्रक्शन मत दो। आपके मेरे क्लास के बाद को जो सिखाना आपका बच्चा है, आप बोलो कि ये पॉइंट्स आप डिस्कस करो, उसके साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन क्लास में जब मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप पीछे पोक मत करो, यार तो मैं तेरे को कल सिखाया था, परसों सिखाया था, ये करा, तेरे को ही नहीं आता है। हाँ मैं इसीलिए नहीं आती क्योंकि मेरे में भी थोड़ी गंदी आदत है, मैं बोलूंगी ये चीज को बताया था तू कर बता, तो वो मेरे को वो अपनी आदत भी पता है। ये इसके लिए मैं तो बिल्कुल पेरेंट को झाड़ देता हूँ, आप बिल्कुल दूर रहो। ठीक है, ये 1.5 घंटा मेरा है, आप इसमें बीच में मत आओ। आपके उसके बाद आपके पास बाप का बच्चा रह रहा है, ठीक है, हफ्ते में 1.5 घंटा 3 घंटा मेरे पास होता है, ये मेरा टाइम, मेरे को एंजॉय करने दो। ठीक है, उसके बाद आपका बच्चा आपके पास है, आपको जो कराने कराओ। तो मेरे मेरे टाइम में मैं किसी को ऐड नहीं होने देता हूँ। ठीक है, आपको बैठना है बैठो, आप पढ़ो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनो, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ये अभी क्रियांश की मम्मी यहाँ पे है, दो दो हफ्ते पहले ग्रेड 1 के बच्चे का मैं क्लास ले रहा था, शॉर्ट कोर्स ले रहा हूँ, 10 सेशन का, 10 से 12 सेशन का है। हाँ हाँ। पेरेंट की इतना सारा बैकग्राउंड नॉइज, मैंने क्लास को स्क्रीन बंद किया। मैंने बोला, मेरे को आप समझ नहीं रहे हो, मैं मेरे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, आप अपने बच्चे को पढ़ाने के सीजन नहीं हो। बैकग्राउंड नॉइज मेरे को इतना डिस्टर्ब कर रहा है, आपके बच्चे को कितना डिस्टर्ब करेगा। सही बात है। बोला आपको नहीं कराना, क्लास छोड़ दो। तब जाके सारे सही सही जगह पे आए, चुपचाप क्लास लेने लगे। झाड़ दिया था पेरेंट को मैंने, बोला आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आप पैसे दे को क्लास चला रहे हो, आपको इंपॉर्टेंस ही समझ में रहा है कि आपका बच्चा क्लास कर रहा है, आप सीख रहा है उसको कुछ, आप अपने इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे आपके बच्चे को। नहीं आपको मेरे वो टाइम, आपको उसका बच्चे का फोकस होना चाहिए आपका। नहीं वो आपकी बात सही है सर, मेरा सिर्फ यही था कि मैं अनाया को अननेसेसरी प्रेशर ना दूं और नहीं कुछ नहीं। नहीं, प्रेशर नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, धीरे धीरे करेगी, आराम से हो जाएगा। कोई एक आध टॉपिक में इश्यू आएगा, ओनली थिंग इसको बोलो 15-20 मिनट करना है बेटा, उतना करना पड़ेगा। और नहीं है तो मैं, आपका नहीं सुनेगी तो मेरे से बात, मैं बात कर लूंगा उसके साथ, ठीक है कि सर। मैं लिसन टू, मैं उसको प्लान बना के दूंगा अच्छे से। मैं पूछूंगा बेटा इतना कर सकती है, उतना करो, मैं उसको टेक्निक भी दूंगा कि आपको ऐसे कैसे क्या क्या स्किप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो।
और मेरे को मालूम है कि अगर मेरा प्लान पे चलेगी तो वो सारी चीजें कंफर्टेबली कर पाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, ओके सर, हाँ ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वेलकम मैम। और किसी को मैम, किसी को डाउट है, कुछ करना है, पूछिए। से न्यू से आपसे कोई एडवाइस लेना चाहता है, जैसे सीबीएसई लूं या आईसीएसई, व्हाट वुड यू सजेस्ट? जैसे मेरी बिल्डिंग में मुझे बहुत लोग पूछते हैं, या तो मेरा आइए, कजिन, ये मैंने रखा क्यों था क्लास, ये मैंने सेशन मैंने इसलिए वही रखा। सीबीएसई सेशन लूं या आईसीएसई। अभी मैं तो बोल सर कैसे आपको पता चलेगा मेरा बच्चा, आप जाओगे तभी पता चलेगा ना, मैथ साइंस में अच्छा है। बिगिनिंग में आप कैसे बोल सकते हो कि अगर आपको तेरा फर्क ही नहीं बच्चा, पड़ता है, आपको हाँ फर्क राइट, ये कहाँ पड़ता है, जूनियर के जी, सीनियर के जी, फर्स्ट सेकंड में क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी बोर्ड में। हाँ वही वही, क्या फर्क पड़ता है कोई सर? भी बोर्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो घर पे ही पढ़ाओ, इतना तो आप खुद ही हाँ, पढ़ा सकते हो पेरेंट। यस तो सर, वहाँ राइट सेकंड सर, में आपको होम स्कूलिंग कराओ, क्या इशू है। लेकिन राइट आपको सर, बच्चे को भेजना है, देखो सोशलाइजिंग करनी है, विच इज गुड, आप कराओ, कोई इशू नहीं, कोई बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन बोर्ड ऐसा सिलेक्ट करो कि आपको आगे जाके चेंज ना करना पड़े। और डेफिनेटली, बिकॉज के बाकी सारे जन आईजी, बाकी सारे जन आईबी ले रहे, बाकी सारे आईसीसी ले रहे, बाकी सारे सीबीएसई ले रहे, तो राइट सर, बाकी मत ले लो। हाँ, मैं एक बोर्ड के लिए मना करूंगा, स्टेट बोर्ड में मत डालो। ओके, सिंपल है, मेरा ओके, सिंपल पॉइंट फ्रेंड है, क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। आपके पास वहां पे कोई ऐसे मैनेजमेंट ही नहीं जो आपको उसको वहां पे बताए कि भाई कोई इनोवेटिव करना है, इसीलिए मैं उसको ना बोल रहा हूँ। बाकी आईसीएसई भी अच्छा से इनोवेशन कर रहा है, सीबीएसई भी कर रहा है, आईबी भी कर रहा है, आईजीसीएसई भी कर रहा है, आईबी भी कर रहा है, सबको कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड में अलाउ नहीं करूंगा, कोई भी स्टेट में हो, कोई भी स्टेट में हो इंडिया में, मैं कोई फर्क राजस्थान। इनोवेशन इन द सेंस सर, इनोवेशन इन द सेंस अरे इनकी पोर्शन, इतनी सी बुक है, एक स्टैंडर्ड में इतनी सी मैथ बुक है, इतनी सी, इतना A4 साइज का बड़ा पेपर भी नहीं है, लॉन्ग बुक है, शॉर्ट बुक, इतनी सी बुक है। ओके, अब क्या ही पढ़ लोगे उसके अंदर आप, करिकुलम चेंज ही नहीं हो रहा है, कोई कोई आइडिया, कोई अपग्रेड ही नहीं हो रहा है। गॉट इट सर, तो क्यों फिर उससे अच्छा घर पे पढ़ाओ, एनआईएस में जाओ, बट बेटर पढ़ाई होगी। स्कूल में भेजना क्यों, प्राइवेट बोर्ड है, एनआईएस है, वैलिड है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम स्कूलिंग कराओ उसको, अच्छी अच्छी बुक लेके आओ, अच्छी अच्छी चीज पढ़ाओ उसको, बच्चे को पढ़ाओ, प्राइवेट ट्यूटर रखो घर पे, 5-6 जन। एक, मैं बोल रहा हूँ 2018 की, अभी कल ही पेरेंट मेरे से कनेक्ट हुई थी, वो मेरे स्टूडेंट फाइनेंस ग्रुप में, तो बोला बेटा हाउ आर यू, कौन, आप कैसे हो। उसने मेरे को बताया था उसकी, मैं अभी मेरे को कल परसों ही कनेक्ट हुई है मेरे वापस। वो एक ग्रुप में थी जो होम स्कूलिंग का था, कोलाबा का था। बोला सर ऐसा ग्रुप है, बोला मैम मेरे को ऐड कराओ। बोला नहीं सर, वो वहां पे ऐसे ऐड नहीं करेंगे आपको, अगर आप पेरेंट है तो ही ऐड होगा। बोला ठीक है। उसने मेरे को बताया था कि सर इतना अच्छा ग्रुप है, बोला कि सारे के सारे पेरेंट एक जगह पे, उसकी करिकुलम ये होती है, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, आपका 12-1 बजे तक, लंच वंच तक के उनका पूरा करिकुलम खत्म हो जाता है, सब कुछ पढ़ाई खत्म होती है। इवनिंग के बाद वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, कोई स्केटिंग करता है, तो कोई यहाँ करता है, तो कोई ये करता है, तो कोई ये करता है, लेकिन वो वाला ग्रुप है। बोला सारे के सारे पेरेंट वहां पे, सारे जन होम स्कूलिंग कर रहे हैं। और मैं बोला आज से 7-8 साल पहले की, जबकि कोविड के पहले की बात है ये। उसकी बेटी अभी मेरे पास थी, ऑफलाइन आती थी, मेरा खुद ऑफलाइन क्लास बंद होकर 7 साल हो गया, मैंने कोई ऑफलाइन नहीं लिया उसके पहले, तो वो बच्ची मेरे घर पे आती थी। तो आप सोचो कि मैं घर से 9-10 साल, 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप सोचो वो क्या लेवल का होगा। उसकी बेटी में भी कल बात की थी, 12th में आ गई है, वो 3rd 4th में मेरे पास थी शायद। तो ऐसे वाले भी है। आप नोट, मैं इनफैक्ट एक होम स्कूलर है मेरे पास, 2-3 पेरेंट है होम स्कूलिंग करते हैं, आई एम गोइंग टू इनवाइट देम एज स्पीकर। मैं प्रॉपरली चाहता हूँ कि मेरी जितनी कम्युनिटी है ना, उसको, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको कुछ बता के, मेरे को एक पैसे का फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि देर इज ऑप्शन अवेलेबल, आप उसको इवेल्युएट करोगे, देखोगे, आप बोलो ना मेरे से, मांगो तो सही सर मेरे को होम स्कूलर का पेरेंट का नंबर दो, मैं एक पूरा होम स्कूलिंग का ये बनाऊंगा, ग्रुप बनाऊंगा। वो पेरेंट आएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, खुद वो पेरेंट बताएंगे कि कहाँ पे है, अच्छा है, अब बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शी इज कनेक्टेड विद मी फॉर लास्ट कम से कम 6-7 साल से कनेक्टेड है। उससे मेरे को सामने से कनेक्ट किया, सर आपका यूट्यूब चैनल देखा, उसका ग्रेड अभी बच्चा शायद 7th में है, एक कोटा में पढ़ता है, तो बोला कि हम कोटा में जाते कभी आते रहते हैं यहाँ पे, तो हमारा फिक्स नहीं होता है, दोनों होम स्कूलिंग कर रहे हैं। अब कोटा में उसे डाला है उसने, तो बोला कि आपकी चैनल देखी, तो उसने मेरे को कॉन्ग्रेट करने के लिए फोन किया था, सर अच्छा कंटेंट है, मेरे को बहुत हेल्प मिल रही है मेरे बच्चे के लिए। सो दैट इज व्हाट कि आपका पूरा क्लास आप बहुत डिटेल में समझाते हो, तो मेरे को काफी हेल्प मिल रही है, जबकि वो तो ऑलरेडी वेटर्न है, ऑलरेडी बड़ा बच्चा है उसका, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है कोटा से, मतलब प्रिपेयर कर रहा है जी के लिए, तो 11th 12th में ऑलरेडी है वो। तो बोला कि मेरे को आपको कनेक्ट करना था। अब मेरे को चाहिए कि पेरेंट को ये अवेयरनेस कराऊं कि होम स्कूलिंग करके भी ऑप्शन है, यहाँ पे कर रहा हूँ।
बोले कि सर बहुत सारे पेरेंट नहीं कर पाते वो सारी चीजें, तो मैं करूंगा। आई विल डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, जहाँ पे मेरे को कोई, वो पेरेंट बोलता है मैम आपको मैं फीस पे नहीं कर पाऊंगा, आपका जो भी है। बोला सर मेरे को नहीं, आप अगर फ्री कर रहे हो मैं भी फ्री करूंगी। सो दे आर सो गुड, पेरेंट्स आर अवेलेबल ऑल्सो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो बोल रहा हूँ मैं इनवाइट करूंगा, किसी को इंग्लिश के टीचर है, कोई साइंस के अच्छे टीचर है, आप बोलो कि मैं उसके सेशंस कराऊंगा। अभी मैं 8 स्टैंडर्ड के मेरे टीचर है, मैं उसको पे कर रहा हूँ, वो उसका रूल है कि भाई मैं हम पे नहीं करेंगे, हम नहीं करें तो मैं पे कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट के लिए फ्री है वो। एक सेशन ले रहा है ना, क्या ही हो जाएगा, 500 1000 2000 रुपये चले जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कम्युनिटी को मेरी सर्विस तो दे रहा हूँ। तो ऐसी सारी चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें ऑप्शन अवेलेबल है। अगर पेरेंट पूछने चाहिए कि सर हमको ये एरिया में इंफॉर्मेशन चाहिए, ये एरिया में चाहिए, मेरे पास कांटेक्ट है, कोई ना कोई मिल जाएगा, मैं एफर्ट लगा दूंगा कि आपको कोई ना कोई, भले बेस्ट ला सकूं लेकिन रिजनेबल तो लेके आऊंगा कुछ ना कुछ कहाँ पर आपके लिए। बट पेरेंट को इनिशिएट करना चाहिए, ये पेरेंट ने इनिशिएट किया, मतलब अगर मैं किसी का पैसा या टाइम या एफर्ट बचा सकता हूँ, ठीक है, देन आई कैन ऑलवेज डू इट। इसके लिए मैंने सेशन लिया, ये हालत होने के बावजूद मैं ले रहा हूँ, जस्ट फॉर सेकिंग दैट, अगर उसमें 2 जन भी चेंज करते हैं, 2 जन भी अगर समझ में आता है उनको कि ये अच्छा होना चाहिए, आई शुड नॉट टेक दिस इन, इट इज वर्थ माई टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, चलिए। सो आपका थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स मेरा फॉर दिस मेरा नंबर इन्फॉर्मेशन। है आपके पास, मेरे ग्रुप में हो, आप ग्रुप में डालोगे, यूजुअली नहीं करता हूँ मैं रिप्लाई, मैं ग्रुप को इंडिपेंडेंटली उसमें चलते चलाते रहता हूँ, लेकिन आपको कोई है, आप ग्रुप में मैसेज डालिए। मैं पर्सनल में ज्यादातर रिप्लाई नहीं करता हूँ, आपके स्पेसिफिक आइडिया क्या, क्योंकि आपको रिप्लाई कर दूंगा आप एक समझ जाओगे, मेरा आइडिया है कि कम्युनिटी सारी समझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको किसी को, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम है, मैं भी हूँ, आपको किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। ये 2 घंटा ऑलरेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है, आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, सर थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम, चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।